Very good afternoon, everyone. Thank you all for joining. So, this is another very different session organized by Sphere India Academy. It's not like the usual informative sessions that we do, but this will be more like a consultative session. So, as you all know, frequencies and intensity of disasters are continuously rising, and especially the state that we're looking at, Rajasthan, it's quite vulnerable to a lot of disasters. And the role of organizations like civil society organizations, NGOs, are very crucial in the disaster resilience efforts. So CSOs and NGOs, they play a very critical role in providing immediate relief, rehabilitation, long-term support, and also helping people to prepare for disasters. So mainly we have to highlight the grassroots level engagement is very crucial when it comes to fostering community resilience and promoting sustainable recovery. So recognizing the importance of and the role that NGOs and CSOs can play can do like post disasters. Mainly we organize this session titled Role of NGOs in Post Disaster Resilience. So we with this session we seek to improve the capacity and coordination of local NGOs and CSOs to enhance their roles in disaster resilience building, resilience building and preparedness, and also for fostering collaboration and coordination for effective disaster response and recovery. So I would like to introduce our speakers who will be with us today. So starting with, I would like to welcome Ms. Divya Gupta, ma'am. She is a seasoned humanitarian professional with notable track record in managing 10 emergency operations since 2004, from Assam flood and tsunami to Gujarat flood, Kashmir earthquake, and Nepal earthquake. She has consistently played a pivotal role in orchestrating immediate relief efforts, facilitating transition responses, and spearheading long-term rehabilitation initiatives. Her expertise lies in WASH, and she has held significant roles with esteemed organizations. In her current role, Ms. Gupta is interested with managing capacity building and advocacy portfolios at SEEDS, a renowned organization committed to resilience building. Additionally, she oversees localization efforts, ensuring that responses are tailored to unique needs of affected communities. Thank you so much, ma'am. We look forward to hearing from you. Next up, we have Ms. Devabrata Sengupta. She is working as a humanitarian manager and thematic focal for DRR and climate action at Bhal Raksha Bharat. She brings over 15 years of experience in disaster risk reduction and climate action to the table. She has worked as a team lead and deputy team lead in several responses with expertise in CCDRR and climate action, resilience building, external management, cluster coordination, urban planning. She has also associated with Social Work Academia at the university level, initially as a faculty and then as an examiner for over 15 years. At present, she works at Bhal Raksha Bharat as humanitarian manager and thematic focal for DRR and climate action, with special interest in accountability, anticipatory action, and nexus building. Next up, we have Mr. Dhananjay Meel. He is a climate change and disaster risk reduction consultant at UNICEF Rajasthan, with a background in Sphere India and experience in DRR and climate change initiatives. He works towards integrating disaster risk reduction into various programs and policies. His expertise lies in fostering collaboration, ensuring accountability, and promoting resilience in disaster-prone regions. And we also have our moderator for the day, Father Vishal, who is working as a director of Disha RCTSSS. He leads the organization dedicated to the development of marginalized communities in Rajasthan. His experience spans over community empowerment, education, health, and livelihood promotions. He is also the current convener of Rajasthan Interagency Group, as he plays a key role in facilitating coordination among different stakeholders for disaster resilience. We were also anticipating a government representative with us,
us, but unfortunately, due to some unforeseen issues, the said speaker won't be able to join. However, we will be updating you if in case we get any response from the government part. But as of now, I would like to welcome once again to all of you to the session. So as to give you all a background, with the session, we aim to enhance the capacity and coordination among the local NGOs, especially post-disaster resilience. So without any further I would like to give it over to Father Vishal, who will be moderating the session today. Over to you. Okay, thank you very much, Hannah, and good afternoon, everyone, and hearty welcome. Today, I could see a big number. We have all gathered here, and as Hannah has already given us the introduction, that what is the purpose why we are today all here gathered. Or today we will try to have a bilingual, because I think in the on board there may be some people who would like to hear the whole conversation in Hindi also. इसलिए हम दोनों भाषा में बात करेंगे. We will be talking in English as well as in Hindi also. आज का हमारा मेन मुद्दा ये है, हम लोग यहाँ पर इसीलिए इकट्ठे हुए हैं बिकॉज राजस्थान, एज हैना आल्सो हैज इंट्रोड्यूस, दैट प्रोन है एरिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिजास्टर होते हैं. बट बेसिकली कुछ सालों के पहले अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो वी वर मोस्टली हैविंग इट, यहाँ पे हीट वेव्स के बड़े इशू होते थे. और हीट वेव एक ऐसा मुद्दा है जिसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता था, बिकॉज कुछ साल पहले क्लाइमेट चेंज के बारे में इतनी बातें नहीं होती थी. तो दिस होल एजेंडा वाज नॉट टेकन वेरी सीरियसली. बट लास्ट ईयर ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसीलिए हुआ बिकॉज लास्ट ईयर हमने देखा जब बिपरजॉय cyclone was hit in the western part of राजस्थान, तब लगा कि हम लोग बहुत वेनरेबल हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं. और इवन हमारा जो आईएजी ग्रुप है ये भी इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारे कॉन्टैक्ट्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं और हमारे एक्सपीरियंस नहीं है. और इसमें हमने एक और मुद्दा, या मे बी द वीकनेस व्हाट वी फाउंड इज दैट, कि हमारी जो लोकल कम्युनिटीज है जिनके साथ हम काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी आज तक अभी इस प्रकार के चैलेंजेस या प्राकृतिक आपदा फेस नहीं की थी, तो वो भी रेडी नहीं है कि उसको कैसे फेस किया जाए. जब हमने लास्ट ईयर वेपर जॉय में काम किया तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज, हमारे जो आईएजी ग्रुप है राजस्थान का, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लोकल पार्टनर्स एक साथ जुड़ नहीं पा रहे थे. विद एवरीबडी इज वर्किंग इन देयर ओन कैपेसिटी. ज़्यादातर बोलेंगे कि हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, कुछ कहेंगे हम बच्चों के साथ काम करते हैं. सम आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एजेंडाज, और मे बी यू कैन से डिफरेंट थीम. और जब ये नेचुरल डिजास्टर की बात आती है तो सबके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है, एंड देन एवरीबडी कुडंट कम टुगेदर ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म. और जब हमने स्पेयर इंडिया की मदद से जब हमने कुछ रॉ डेटा फील्ड से निकालने की कोशिश की, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी. लाइक यू कैन से ऑलमोस्ट हमने 8 या 10 दिन सिर्फ हमने डेटा कलेक्शन, प्रॉब्लम को समझना और कैसे हमको उसको रिलीफ पहुंचाना है, उसको ही समझने में इतना देर हो गया था. तब तक जब तक हम फील्ड में लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे, देयर वाज अ लॉन्ग बिग गैप. और ये गैप इसीलिए आया बिकॉज हमारे पास मैन पावर की कमी थी, हमारे पास नॉलेज की कमी थी. हमने कभी फील्ड की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम नहीं जान पाए थे. एंड देन मेजर हम सब भी उस बात को मानेंगे कि हमारे लिए फंडिंग का एक बड़ा इशू था, कि हम किसको अप्रोच करें ताकि कुछ फंडिंग हमें मिल पाए और उसके बाद हम फील्ड में उन लोगों की मदद कर पाए. सो ये सारे चैलेंजेस मैं अपनी तरफ से इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमने लास्ट ईयर प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को हमने खुद से देखा है. वी हैव एक्सपीरियंसेस, therefore I'm sharing it. But then today on board we have very experienced people, and especially Miss दिव्या गुप्ता जो सीड से हैं, उनका भी बहुत बड़ा जो है सपोर्ट रहा है वेस्टर्न राजस्थान में इस कम्युनिटी को वापस से बिल्ड करने के लिए. एंड देन मैं चाहूँगा कि हम सब हमारे स्पीकर्स को आगे सुने और उसको और गहराई से समझने की कोशिश करें. लेट्स हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग दैट कि डिजास्टर कैसे होता है, एंड हाउ टू बिल्ड रेसिलिएंट कम्युनिटी, एज वेल एज हम एज एन एनजीओ पार्टनर हमारा रोल क्या होना चाहिए, हम कैसे उसको वी ऑल कम टुगेदर एंड देन वी कैन रिलीव और वी कैन गिव रिलीफ टू the people, those who are in trouble and those who are affected by this disaster management. So over to you, Hannah. You can ask the members, and members will can surely share today what they have to. Thank you. Thank you so much, Father Vishal. Divya ma'am, I'm giving it over to you to let us know more about the disaster preparedness and how can NGOs. Hina, can you share my PPT here? Yes, It will be yes, easier for me.
Can you see, ma'am? Yes, Sit. I can see. Yes. So thank you, Father Vishal. जैसे कि आपने बोला, and Seeds is always with our IAG and our partners. और फॉर्चुनेटली ये साल हम लोग राजस्थान को एज ए अपना टारगेट स्टेट ले रहे हैं, और मेरे साथ मेरी कलीग रोजीना भी जुड़ी है। तो हम धीरे धीरे बायलेटरल भी सभी पार्टनर्स के साथ और आईएजी के साथ भी डिस्कशन करेंगे कि हमारे सीड्स की जो 2030 की स्ट्रैटेजी है उसमें हम कैसे हमारे आईएजी और आईएजी मेंबर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में अच्छे डोनर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा इनोवेशन का काम हुआ है, वो इनोवेशन के साथ में आपको कैसे जोड़ सकते हैं। तो हम एक अलग से भी उस पर डायलॉग और डिस्कशन करेंगे आईएजी के साथ में। और मेरा कांटेक्ट डिटेल मैंने पीपीटी में दिया है, और मैं रोजीना को भी बोलूंगी वो अपना कांटेक्ट डिटेल दे देंगे इसमें। तो आप फ्यूचर में भी आफ्टर दिस ट्रेनिंग भी हम सबके साथ में कांटेक्ट में रहेंगे और मिलके काम करेंगे। तो जैसे कि हिना ने मुझे जो एजेंडा भेजा था, तो हिना नेक्स्ट। तो उसके हिसाब से मुझे अगले 10 मिनट में जो बात करनी है, लेकिन हम अभी के अलावा भी अगर आपको लगे तो हम फर्दर भी बाद में डिस्कशन इस पे करेंगे कि कैसे हमें दो चीजें समझनी है, कि कैसे हमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली समग्र रूप से हमें हमारे रिस्क को समझना है। मान लीजिए कि अगर हम 40 गांव में काम कर रहे हैं या 50 गांव में काम कर रहे हैं, हमारे पर्टिकुलर जियोग्राफी का, हमारे एरिया का क्या रिस्क है, कौन कौन से हैजार्ड हैं वहां पे। दूसरा चीज हमें ये भी समझना है कि वल्नरेबिलिटी क्या है, कमजोरियां क्या क्या है, कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो, चाहे वो वहाँ के जो लोग हैं उनके बीच में जो डिफरेंट कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनकी क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, और तीसरा कि उनकी कैपेसिटी रिलेटेड क्या क्या वल्नरेबिलिटी है। तो हम ये पूरा ये सब चीजों को समझेंगे। इन्हें आप शेयरिंग उसमें लगा दीजिए, सेकेंड स्लाइड। डू यू वांट मी टू डिस्प्ले? डू यू वांट मी टू डिस्प्ले? हिना आप म्यूट पर हैं। Please carry on, ma'am. Please carry on. ओके, तो हम दो चीजों को समझेंगे अगले 10 मिनट में, कि एक तो हम कैसे हमारा जो पूरा जो एक रिस्क है वो क्या है हमारे पर्टिकुलर एरिया का जहां हम काम कर रहे हैं। दूसरा चीज ये हम समझेंगे कि उस रिस्क को समझने के बाद हम कैसे अपने एरिया के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे। और हम जितना ज्यादा एज ए प्लान हम रेडी रहेंगे, एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम रेडी रहेंगे, उतना ज्यादा हम सही से रिस्पॉन्स कर पाएंगे इन केस कोई इमरजेंसी हमारे एरिया में आती है। तो हमारी जो तैयारी है वो कम्युनिटी लेवल पे भी होनी है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी होनी है, और ओवरऑल मिला के सारे स्टेक होल्डर, समाज, सरकार, बाजार, कि पूरा जो समाज है वो, जैसे जिसमें एनजीओ है, कम्युनिटी है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, और मार्केट के भी जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग जो अपने बिजनेस के लिए उस एरिया में काम करते हैं, उनका रोल भी इमरजेंसी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम टाइमली उनको मैप कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि वो किस तरह से सपोर्ट पहुंचा पाएंगे, किस तरह से अपनी सर्विसेज पहुंचा पाएंगे, तो हमारे लिए इजी होगा टाइमली उनसे रिलेटेड सर्विसेज को ठीक कर पाना। और सरकार और जो पूरा लाइन डिपार्टमेंट है या जो भी ग्रास रूट फंक्शनरीज गांव में काम करते हैं, वो सबकी क्या प्रिपेयर्डनेस लेवल है। तो ये दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहले तो हम समझेंगे कि रिस्क क्या है, फिर उस रिस्क को समझने के बाद कैसे हम प्लान बनाए, अपने एरिया का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट। तो पहले भाग में हम ये एक लिस्ट समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिससे हमें आइडेंटिफाई होगा कि क्या क्या रिस्क हमारे एरिया में है। नेक्स्ट। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है। नंबर 1, हम कहाँ काम कर रहे हैं, अपने एरिया। जैसे मान लीजिए कि कोई एनजीओ ऐसे होंगे हमारे पार्टनर्स जो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे होंगे, 2 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे होंगे। कोई हमारे पार्टनर ऐसे होंगे जो पर्टिकुलर एक ब्लॉक में या कुछ गांव में काम कर रहे होंगे। तो हमारी जियोग्राफी कौन सी है उसको मैप करना। उसके बाद में हमें ये समझना है कि कौन कौन से हैजार्ड उस एरिया में, जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, पास्ट में हमने क्या क्या हैजार्ड वहां होते हुए देखे हैं। कुछ एरिया में ड्राउट का सिचुएशन होगा, हीट वेव का सिचुएशन होगा, कुछ एरिया में फ्लड का सिचुएशन होगा। बहुत इंडस्ट्रियल लोकेशंस हैं, तो हो सकता है इंडस्ट्रियल रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो हैजार्ड होते हैं, उनके होने का डर होगा।
अगर कोई कोई एरिया बहुत टूरिस्ट फ्लो वाला एरिया है, पुष्कर है, अपना जयपुर है, जोधपुर है, बहुत टूरिस्ट आते हैं, बहुत होटल्स हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है वहां पे, तो वो भीड़ वाले एरियाज में किस तरह के हैजार्ड हो सकते हैं। तो हमें एक तो ये समझना है कि कौन सी जियोग्राफी में हम काम कर रहे हैं। दूसरा चीज, हमें उस हमारी जियोग्राफी में कौन कौन से हैजार्ड अफेक्ट करते हैं, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस से हमें लिस्ट आउट करना है। और कौन जो हैजार्ड हमारे एरिया को अफेक्ट करते हैं, उस हैजार्ड Yes. को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से लोग वल्नरेबल हैं। और जो वल्नरेबिलिटी है वो लोगों के कॉन्टेक्स्ट में समझनी है कि कौन लोग कमजोर है। एक एक गांव में, एक कम्युनिटी में अगर 500 आदमी है, 1000 लोग हैं, तो 1000 में सारे लोग तो वल्नरेबल नहीं होंगे। कौन लोग वल्नरेबल है वो हमें लिस्ट आउट करना, और किस तरह की उनकी वल्नरेबिलिटी है वो समझना। और वो भी हमें हैजार्ड वाइज। कोई हो सकता है कि सिर्फ फ्लड की सिचुएशन में वो फैमिली या वो इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होगा, लेकिन अर्थक्वेक के केस में शायद नहीं होगा, है ना। तो हैजार्ड वाइज हमें वल्नरेबिलिटी को लिस्ट आउट करना है, और वो लिस्ट करके फिर हमें अपने प्लान की तरफ बढ़ना है। तो ये एक स्टडी करना, रिसर्च करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, फिर हमें ये समझना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें सारे ही स्टेक होल्डर का रोल इंपॉर्टेंट है। हम एज ए एनजीओ अकेले काम नहीं कर सकते। गांव के लेवल पे जो हमारी पीआरआई है, जितने भी ग्रास रूट फंक्शनरीज हैं, कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, जो जिनको पूरा कम्युनिटी के बारे में पता है और कम्युनिटी के बीच में काफी एक्टिव होकर रोल प्ले करते हैं, और कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो बहुत लास्ट माइल की फैमिलीज भी हैं उनको, जैसे कि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ज्यादातर स्टेट्स में कास्ट को लेके या रिलीजन को लेके या गरीबी और अमीरी को लेके एक काफी बड़ा एक क्लास, एक डिफरेंस है। जो लोग पावरफुल हैं वो हैजार्ड की सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं अपने आप को, उनका नुकसान कम होता है और अपने आप को वापस रिकवर इजीली कर लेते हैं। पर जो कमजोर तबके हैं वो सिमिलर सिचुएशन में अपने आप को रिकवर नहीं कर पाते। कोविड हम सबको याद है, जो लोगों के पास इतना एक एक पावर था या इतनी ताकत थी, रिसोर्स था कि वो महीने 2 महीने आराम से अपने फैमिली को खाना खिला सकते थे, वो आराम से लॉकडाउन में घर के अंदर बैठे थे। पर वही हमारे बीच ऐसी फैमिलीज थी जिनको ये पता नहीं था कि अगर मुझे कल मजदूरी नहीं मिलेगी, कल काम नहीं मिलेगा, तो मैं अपना घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा। तो वो लोगों ने क्या किया कि वापस अपने नेटिव की तरफ पैदल ही निकल पड़े अपनी फैमिली को लेके, जिसमें रास्ते में उनका कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की जान गई, कितने लोग बीमार हुए, कितना सारा उनका रिसोर्सेस का वेस्ट हुआ। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग हैं जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, और उनकी वल्नरेबिलिटी किस तरह की है, और उस पर हम रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं जब भी कोई हैजार्ड होता है। और क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम है, हमारे पास सॉल्यूशन भी है। उस एरिया में सपोज अगर हम बोलते हैं कि इमीडिएटली कोई फ्लड हुआ और पीने के पानी का प्रॉब्लम होगा, तो क्या पहले से हमने मैप करके रखा है कि कौन कौन से हमारे पानी के सोर्सेज हैं जो फ्लड के टाइम पे भी सेफ वाटर के लिए एलिजिबल हैं। या अगर ड्राउट का सिचुएशन होता है और गांव में अगर 10 पानी के सोर्सेज हैं, पर 2 ही सोर्सेज ऐसे हैं कि ड्राउट सिचुएशन में भी उनमें पानी आता रहता है, तो क्या हमने हैजार्ड वाइज हमारे जितने रिसोर्सेज हैं उनको मैप किया है, या गांव में और जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सिर्फ पैसे की बात नहीं होती। एक तो है पैसे की बात, दूसरी चीज बात यह है कि कितने हमारे पास जो सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज हैं, उनकी बात। तीसरी बात आती है स्किल्स की, कि अगर हमारे विद इन द कम्युनिटी कौन कौन से लोग किस चीज में ट्रेंड है, जिनकी सपोर्ट, जिनका जो कंट्रीब्यूशन है हम आपदा के समय ले पाएंगे। तो 3 तरह से हमें रिसोर्सेज को मैप करना पड़ेगा कि कौन, मान लीजिए कौन पर्टिकुलर स्कीम में किस तरह का पैसा है जिसको हम इमरजेंसी में यूज करते हैं। जैसे अभी आपका जो 15 फाइनेंस कमीशन है, या आपके जो पीआरआई की जो डेवलपमेंट की स्कीम्स है, उसमें एक है कि आप इमरजेंसी में कितना पैसा यूज कर सकते हो इमरजेंसी की सिचुएशन में। दूसरा चीज, एनजीओ के पास अपने खुद के फंड है, या कोई एनजीओ फंड रेज कर सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो सर्विसेज वो इमरजेंसी में किस तरह से उनकी सर्विसेज लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। तो एक तो हो गई पैसे की बात। दूसरा, आपका कौन कौन से रिसोर्सेज आपके पास है, मटेरियल या इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए कि आपने ये मैप करके रखा है कि कौन कौन सी लोकेशन गांव में है जहां पे इमरजेंसी में लोगों को रिलोकेट करके रखा जा सकता है। वहां पे खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, और वो लोकेशन सेफ है हैजार्ड की सिचुएशन में।
और तीसरी चीज आती है स्किल्स, कि कौन कौन से लोग आपके बीच में स्किल्ड हैं, जिनको जो ट्रेंड है, जो लोगों को बचा सकेंगे, लोगों को सेट कर सकेंगे, एक जगह पे शिफ्ट कर सकेंगे, जो लोगों को रिलीफ की सप्लाई कर सकेंगे, या रिलीफ की सप्लाई के बाद में उनकी उनसे रिकवरी के लिए उनको क्या क्या सपोर्ट चाहिए, उससे रिलेटेड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकेंगे। तो इस तरह से आपको पूरा रिसोर्सेस का भी अपना लिस्ट बनाना है। नेक्स्ट। और जब हम ये सब बात करते हैं, तो हमारे जो कुछ क्रॉस कटिंग इश्यूज हैं उनको हमें जरूर याद करना है। जैसे कि इन्वायरमेंट, हम जब भी कोई प्लान करें, इन्वायरमेंट को हमेशा ध्यान में रखें। हमारी कोई भी प्लानिंग इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए किसी भी तरह से। चाहे हम शेल्टर का डिजाइन बनाते हैं, या हम पानी को वापस लाने की बात करते हैं, पानी को हार्वेस्ट कंजर्व करते हैं, कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं, इन्वायरमेंट को हमारी किसी एक्टिविटी से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरा चीज हम ये समझते हैं कि इंक्लूजन हमेशा इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं कम्युनिटी, तो हमारे लिए लास्ट माइल का पर्सन या छोटा सा एक बच्चा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कोई बड़ा व्यक्ति या कोई पावरफुल व्यक्ति या जो कोई पद पे बैठा हुआ है वो व्यक्ति। हर व्यक्ति हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो लोग भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जिनका वॉइस नहीं है, जो जिनकी बात बाहर आती नहीं है, जिनकी प्रॉब्लम किसी को पता ही नहीं चलती है, जो अपनी प्रॉब्लम को बता ही नहीं पाते हैं। तो उनका स्टेक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उनके लिए भी हमारी जो तैयारी है उतनी ही हमें सीरियसली और करके करना है। तो हमें वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना, कि कौन किस तरह के हैजार्ड में कौन कौन से लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, और किस तरह कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वल्नरेबल है, जिसको हम डेवलपमेंट स्कीम के साथ इंटीग्रेट करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। गुजरात में जब 2017 में पीएम आवास योजना लॉन्च हुई, तो उस समय पे यहाँ पे आप सब जानते होंगे, हुनरसाला काफी नोन ग्रुप है एशिया लेवल पे, जो नॉन प्रॉफिट ग्रुप है, हमारे सबके पार्टनर्स ही हैं वो लोग शेल्टर डिजाइन करते हैं, शेप शेल्टर डिजाइन करते हैं। तो उनको गवर्नमेंट ने बुलाया और उनको बोला कि पीएम आवास योजना में जो भी घर बनेंगे, वो घर सेफ होने चाहिए, तो आप हमें डिजाइन बना के दो। उन्होंने गुजरात की 5 टोपोग्राफी को ध्यान में रखते हुए 5 तरह का डिजाइन बना के दिया, कि कच्छ में किस तरह के घर बनेंगे, जो कोस्टल के डिस्ट्रिक्ट है वहां कैसे घर बनेंगे, जो प्लेन डिस्ट्रिक्ट है वहां कैसे घर बनेंगे। 5 उन्होंने वो डिजाइन बना के दिए, और वही 5 डिजाइन को गवर्नमेंट ने उसमें इंटीग्रेट किया, कि फैमिलीज को वो डिजाइन दिए कि इन इन डिजाइन पे आपको घर बनाना है। तो जो आपका डेवलपमेंट का जितना भी काम है, आपकी वल्नरेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, आपको आपका जो हैजार्ड है उसको ध्यान में रखते हुए, आपको सारा की सारा जितना डेवलपमेंट का काम है उसमें आपको उसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं डिजास्टर से होने वाला जो आपका लॉस है, आप धीरे 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 करके उसको कम करते जाएंगे। और इनकेस अगर बड़ा कोई डिजास्टर, कोई इमरजेंसी आती है, तो आप इमीडिएटली लोगों को राहत पहुंचा पाएंगे, लोगों की जितनी ज्यादा जान बचा पाएंगे आप। तो ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब हैजार्ड को भी समझना। और हैजार्ड की अगर आप देखो, तो एक चीज तो हमें ये समझनी है कि हमारा प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है, उसमें कौन कौन से हैजार्ड हमारे एरिया में हुए हैं, वो हमें एक अच्छा आइडिया देगा समझने के लिए कि जिस ज्योग्राफी में हम काम कर रहे हैं, वहाँ के कौन कौन से हैजार्ड हैं। दूसरा चीज, हमारा जो टाई अप है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ भी होना चाहिए, डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ भी होना चाहिए, जो हमें हेल्प करेंगे समझने में फ्यूचर डिजास्टर्स को, फ्यूचर हैजार्ड को। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अब काफी सारा बढ़ता जा रहा है, हैजार्ड के नंबर्स और टाइप बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे फादर विशाल ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया साइक्लोन बिपरजॉय का। जिस तरह का पूरा सिचुएशन था, लग रहा था कि कच्छ में जाके वो हैवी लैंडफॉल करेगा और कच्छ का बहुत सारे एरिया में बहुत डैमेज होगा। पर वहां पे इतना डैमेज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ कुछ लोकेशंस पे, पर ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। और वो उस पर्टिकुलर साइक्लोन ने जाके यहाँ पे अपना जो राजस्थान का एरिया था, बाड़मेर वगैरह में, वहां पे जाके एकदम से बड़ा लैंडफॉल कर दिया और काफी बड़ा फ्लड वहां पे आ गया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है, वो कौन से हैजार्ड है, और हमारा जो क्लाइमेट चेंज का सिचुएशन है, जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है, उस तरह से क्या क्या चीजें और बढ़ सकती हैं फ्यूचर में, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें हमारी हैजार्ड की मैपिंग करनी पड़ेगी। और वो हैजार्ड की मैपिंग आपकी ज्योग्राफी वाइज भी डिफरेंट हो जाएगी। कि मान लीजिए कि अगर आप शहर एरिया में रह रहे हो, मल्टी बिल्डिंग स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हो, तो आपका हैजार्ड का टाइप चेंज हो जाएगा। और अगर आप गांव में स्कैटर्ड घरों में रह रहे हो, कच्चे घरों में रह रहे हो,
तो हैजार्ड का टाइप आपका चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहा है तो उसे फ्लड से डायरेक्ट इफेक्ट ऊपर की जो फैमिली उसे नहीं पड़ेगा, पर गांव में जो कच्चे घर में रहने वाली नीचे तरफ को जिनका घर है उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा। अर्थक्वेक आता है तो ये बिल्डिंग वाली फैमिली इमीडिएटली उनको अफेक्ट पड़ेगा और ये वाली फैमिली काफी सुरक्षित हो जाएगी। तो आपको हैजार्ड पर्टिकुलर लोकेशन वाइज, कम्युनिटी वाइज आपको लिस्ट आउट करना पड़ेगा। और जहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह होती है वहाँ इंडस्ट्रियल रिलेटेड भी बहुत सारे हैजार्ड होते हैं। और कोविड ने हमें ये सिखाया कि हेल्थ हैजार्ड भी एक बहुत बड़ा हैजार्ड हो सकता है, जो कि पूरी की पूरी, जैसे हमारी वाली जो जनरेशन है उन्होंने पुराने वाले जो हेल्थ के जिससे रिलेटेड बड़ी बड़ी इमरजेंसी नहीं देखी जो अब इंडिया में हो चुकी है पुराने टाइम में, जैसे प्लेग का हुआ था, काफी सारी हो चुकी है, हमारी जनरेशन ने उनको नहीं देखा। लेकिन कोविड ने वापस हम सबको वो याद दिला दिया कि हेल्थ से रिलेटेड भी हैजार्ड इतना बड़ा हो सकता है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी उससे अफेक्टेड हो सकती है। तो क्या अगर ऐसी कोई भी नई बीमारी आती है, कोई भी नया ऐसा हेल्थ सिचुएशन आता है, तो क्या हमारी कम्युनिटी उसके लिए तैयार है? तो ये हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये इसमें जब हम बात करते हैं कि हम कैसे असेस करेंगे रिस्क को अपने एरिया के, तो उस रिस्क को असेस करने के लिए हमें लोकेशन समझनी है। लोकेशन के बाद में हमें वल्नरेबिलिटी समझनी है। वल्नरेबिलिटी 3 रूप से समझनी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, कौन लोग वल्नरेबल हैं, और कि किस तरह की उनके हैजार्ड है। पहला चीज ये था कि हमें हैजार्ड को लिस्ट आउट करना पड़ेगा। दूसरा चीज हमें वल्नरेबिलिटी को समझना पड़ेगा। तीसरी चीज हमें जो है क्या क्या रिसोर्सेज हैं उनकी मैप करनी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल हमारा, अगर हमें रिस्क को असेस करना है हमारे एरिया को कि कैसे हमारी, अगर हम जिस लोकेशन पे काम कर रहे हैं 10,000 की पॉपुलेशन को कैटर कर रहे हैं, तो वो 10,000 की लोकेशन किस तरह के रिस्क में है, तो वो हमें पूरा ओवरऑल एक एक स्टडी करके समझना पड़ेगा। नेक्स्ट। तो जैसे कि ये पूरा मैंने एक समरी बनाने का कोशिश किया, क्योंकि थोड़ा ज्यादा डिटेल हो गया है। कि एक तो हमें होलिस्टिक अप्रोच में समझना पड़ेगा कि कौन कौन से तबके हैं जो अफेक्टेड हैं, कौन कौन से तबके हैं जो जिनको जिनको हमें ध्यान में रखना है। दूसरा चीज ये है कि हम पहले से आइडेंटिफाई कर सके कि कौन कौन से हैजार्ड हमारे एरिया में हो सकते हैं। तीसरा चीज, रिसोर्सेज जो है उनको कहाँ खर्चा करना है, रिसोर्सेज को कहाँ यूज करना है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड रिसोर्सेज हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रिसोर्सेज हो, मटेरियल से रिलेटेड रिसोर्सेज हो, चाहे वो स्किल से रिलेटेड रिसोर्सेज हो। फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस स्कूल और जिन बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं वो बच्चे कैसे सेफ हों, यानी वो सेफ स्कूल को हम कैसे वो करके इंश्योर कर सकते हैं। अगर हम लाइवलीहुड में काम कर रहे हैं, तो जिन बहनों के साथ या जिन परिवारों के साथ हम काम कर रहे हैं, तो कोई भी एक्टिविटी उनकी इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो उन्हें और ज्यादा वल्नरेबल बना दे, बल्कि ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आपदा आने के समय वो लोग ने अपने आप को टाइमली रिलीव कर पाए। और फिर है हमारा कम्युनिटी रेजिलियंस। कम्युनिटी की खुद की हमें कैपेसिटी को इतना बढ़ाना है, रिसोर्सेज समय पे उनको मिल जाए, उनकी एक तैयारी हो जाए, और उनकी स्किल बिल्डिंग इतनी हो जाए कि वो खुद ही किसी भी बड़ी आपदा को हैंडल कर सके, उससे बाहर आ सके। नेक्स्ट। नेक्स्ट है ना। Ma'am, can you see this? या जस्ट बिफोर दिस। Done. या सो फिर हमें समझना होगा कि जो भी रिस्क हैं उनको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको उत्तराखंड से देती हूँ कि मनरेगा की स्कीम में वो बहुत, जैसे उत्तराखंड में स्लाइड बहुत होता है, पहाड़ से स्लाइड होता है, नीचे से आ जाता है, वहां का रॉक्स वगैरह नीचे आ जाते हैं, जो कि वहां के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। तो कैसे हम जितना भी रिस्क है उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, जितनी भी हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है या जो भी हमारे काम है, कैसे हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं। फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि सारे के सारे स्टेक होल्डर का रोल इंपॉर्टेंट है, उन सबको कैसे हम इंगेज करें। काम अकेला सरकार का नहीं है, काम अकेला एनजीओ का नहीं है, काम अकेला पीआरआई का नहीं है। कम्युनिटी का हर मेंबर, ग्रास रूट फंक्शनरीज, लोकल लीडर्स, यहाँ तक कि आपका जो मार्केट है, जो लोग मार्केट में बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस कम्युनिटी के साथ डे टू डे उनका काम है, उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है
कि अगर इमीडिएटली खाना चाहिए तो लोगों के पास हो सकता है पैसा उस समय हो खाना खरीदने के लिए, लेकिन मार्केट बंद है तो खाना कैसे सप्लाई होगा, या सामान जो भी उन्हें चाहिए एसेंशियल कैसे मिलेगा। सपोज गवर्नमेंट ने उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया कि भाई चलो अदर नीड्स के लिए ये आपके खाते में पैसे आ गए, अब आप अपना मैनेज करो। तो अगर मार्केट के साथ हम पहले से इंगेज नहीं रहेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो पैसा होते हुए भी लोग खाना कैसे खरीदेंगे, या अगर बैंक बंद है तो क्या अरेंजमेंट हो सकता है उनके लिए कैश का, तो वो हमें समझना पड़ेगा। और अडेप्टिव प्लानिंग होनी पड़ेगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो सिचुएशन है, हमारा हैजार्ड का सिचुएशन चेंज होता जा रहा है। ड्राउट वाले एरियाज में फ्लड आ रहा है। बुंदेलखंड में 2 साल पहले जो फ्लड आया था, वो फ्लड ऐसा था कि उस एरिया में 90 साल से कभी फ्लड नहीं आया था। अब 90 ईयर से कभी फ्लड नहीं आया, तो ऑब्वियसली वहां की कम्युनिटी फ्लड को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं थी। और राजस्थान की भी काफी लोकेशंस ऐसी हैं जो सालों से, 90 साल से, 100 साल से ड्राउट देख रही हैं, और वहां बहुत ज्यादा माइग्रेशन है, लोग ऑलमोस्ट गांव सारे खाली हैं, बुजुर्ग और लोग अकेले बचे हैं, और वो ऐसे गांव में फ्लड आ रहा है। तो हमें एडेप्टिव प्लानिंग करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा डिजास्टर, इसका क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो को, उसको ध्यान में रखते हुए। और कैपेसिटी बिल्डिंग, जितना ज्यादा लोगों की कैपेसिटी हम बिल्ड कर पाएंगे, उतना ज्यादा हम लॉस होने से रोक पाएंगे। और सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, जो पूरा हमारा जैसे डेवलपमेंट का जो पूरा एस्पेक्ट है, या जितने भी हमारे डेवलपमेंट डेफिसिट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, और लोगों को जितना ज्यादा हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब हमने ये 3 चीजें समझ ली। नेक्स्ट, अब हमने 3 चीजें समझ ली। पहला है हमारे क्या क्या हैजार्ड है, दूसरा है कि हमारी क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, तीसरा हमारे क्या क्या रिसोर्सेस है। ये 3 चीजें समझ के अब हमको प्लान बनाना है हमारे एरिया के लिए। नेक्स्ट, तो क्या क्या स्ट्रैटेजी हम प्लान कर सकते हैं उसको बनाने के लिए। सबसे पहला चीज है आपका कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट। कम्युनिटी ही अपने आप को सबसे ज्यादा जानती है, हम और आप इतना नहीं जानते। हम गांव में जाते हैं, काम करते हैं, एक ओवरऑल समझ हमारी है, लेकिन अपने गांव, अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थिति को वो कम्युनिटी मेंबर जितना अच्छे से जानता है, उतना अच्छे से कोई भी नहीं जानता। तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, उनकी बात को समझना, और उनको ही हर एक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, और हर एक तरह के एग्जीक्यूशन में उनको इन्वॉल्व करना, और क्योंकि अल्टीमेटली उनको ही फेस करना है पूरा सिचुएशन, तो उनको उनका एंगेजमेंट डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में बराबर होना बहुत जरूरी है। और कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं, तो कम्युनिटी का हर तबका, ऐसा नहीं है कि वो लोग जो बड़े एक्टिव हैं वो लोग आके हर प्लानिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, पर जो लोग कमजोर है वो बेचारे पीछे रह गए, उनका तो वॉइस किसी ने सुना ही नहीं। तो ये बहुत हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फिर हमें समझना है कि रिस्क क्या है, कि कौन कौन से हैजार्ड हैं, और वो हैजार्ड में कौन कौन सी लोकेशंस हमारी अफेक्टेड होती हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटी है और क्या क्या कैपेसिटी है, ये समझना, और वो समझ के फिर हमें प्लान में इसको डालना कि हमारा XYZ विलेज है, यहाँ पे ये हैजार्ड है, ये रिस्क है। और मान लीजिए कि ये सिचुएशन में हम प्रेग्नेंट लेडीज को कैसे सपोर्ट करेंगे, छोटे बच्चों को कैसे सपोर्ट करेंगे, जिनके यहाँ जानवर हैं उनको, जानवरों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, फिर हमें रिसोर्स मैपिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्स हमें 3 तरह से देखने हैं। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो भी स्किल्स हैं लोगों की, उनको हमें ध्यान में रखते हुए कि हमारी हम लोकेशन मैप करेंगे कि कौन कौन सी सेफ लोकेशंस है, या अगर पानी नहीं मिलता है इमरजेंसी के टाइम, तो पानी कहाँ मिल सकता है, या सब सामान की जो सप्लाई है वो इमरजेंसी में कहाँ से हो सकती है, कौन लोग हमारे यहाँ स्किल्ड हैं जो कि इमीडिएटली हमें सपोर्ट पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा रिसोर्स मैपिंग, उसमें करना। फिर हमारे लिए कस्टमाइज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, लोगों को बहुत अवेयरनेस देना और ट्रेंड करना, और कस्टमाइज, अगर उस गांव की जो हैजार्ड है, जो वल्नरेबिलिटी है, उसी को ध्यान में रखते हुए उनको ट्रेनिंग देनी है। ऐसा नहीं होगा कि जो हमारी कश्मीर में जो हमने ट्रेनिंग प्लान की थी वो हमारी राजस्थान में काम आ जाएगी। इवन राजस्थान में भी जो ट्रेनिंग हमने जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान की होगी, वो हमें बाड़मेर में काम नहीं आएगी। और जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो जयपुर सिटी के लिए प्लान की होगी, वो हमारे किसी इंटीरियर गांव में काम नहीं आएगी। तो हमें ये चीज को बहुत मतलब प्लान करके कस्टमाइज तरीके से उनके लिए ट्रेनिंग प्लान बनाना है, और उनको ट्रेन करना है। और ट्रेनिंग में लास्ट माइल के लोगों को छोड़ना नहीं, हर किसी को ट्रेन करना है, और उन्हें पता होना चाहिए कि ये सिचुएशन में हम कैसे हैंडल करेंगे, और उनकी डे टू डे डेवलपमेंट एक्टिविटीज में वो इसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, फिर है अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब सिर्फ सरकार या IMD या मौसम विभाग नहीं है, ये
लास्ट माइल तक आपका मैसेज पहुंचना चाहिए कि आज बहुत लाइटनिंग इतने बजे से इतने बजे तक इस डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है या इस ब्लॉक में होने वाली है, तो जो लोग भी हैं वो अपने आप को सेफ रखें। तो दो तरीके से लोगों तक वो अर्ली वार्निंग का समझ होना चाहिए। नंबर एक, कि पर्टिकुलर हैजार्ड में अपने आप को सेफ रखते कैसे हैं। मान लीजिए लाइटनिंग से सेफ रखते कैसे, पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए। फिर मुझे सही टाइम पे ये पता होना चाहिए कि मेरे एरिया में कब लाइटनिंग होने वाली है। अगर लास्ट माइल तक वो एसएमएस के थ्रू, कम्युनिटी इंगेजमेंट के थ्रू या कम्युनिटी लेवल का जो अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है, रेडियो, हैम रेडियो के थ्रू, कम्युनिटी रेडियो के थ्रू, कैसे वो इन्फॉर्मेशन को टाइमली वहां पहुंचाया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्लानिंग उसमें डालना। नेक्स्ट, और इवैक्यूएशन प्लान बनाना। ऐसा नहीं है कि आज डिजास्टर हो गया अब हम सोच रहे हैं कि भाई कैसे हम अपने आप को इवैक्यूएट करें, कैसे जान बचा के बाहर आए। ये प्लान पहले से होना चाहिए कि गांव में कौन लोग हैं जो इसके लिए स्किल्ड हैं, क्या क्या मटेरियल है जो हमारे पास है। लाइक अगर फ्लड की बात करें तो बोट्स वगैरह हैं या लाइफ जैकेट वगैरह है, रस्सी वगैरह है ना। या जैसे हम पहाड़ पे अगर काम कर रहे हैं तो कितने लोगों के पास, हमारे पास पालकी है, कितने लोगों के पास घोड़े हैं, कितने लोगों के पास म्यूल है, वो हमें ध्यान में रख के हमें कर। आप जस्ट मुझे एक ही सेकंड दीजिए, एक ही सेकंड मुझे दीजिए। तो ये हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस किया, अभी मुझे 20 इयर्स होने वाले हैं जून में। पिछले 20 साल से मैं सेक्टर में काम कर रही हूँ। मैंने ये देखा, शुरुआत में जब हमारी जर्नी शुरू हुई, हम लोग ज्यादा एनजीओ काफी कोलैबोरेटिव होके काम करते रहे, जिसमें सरकार अपना अलग एफर्ट कर रहा है, हम अपना अलग एफर्ट कर रहे हैं, हम सरकार को जाके रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमने इतना काम कर लिया, या हमें ये काम करना है, इसकी परमिशन दे दो, या फाइनल काम हो गया तो उसकी रिपोर्ट दे दी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये हम लोग आईएजी जो हमारे देश में काफी अच्छे काम कर रहे हैं, लगभग मतलब करीब 26 स्टेट्स में आईएजी एक्टिव हैं और कुछ आईएजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आईएजी ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। हम जो भी काम करें वो काम मिलके करें, ताकि हम एक दूसरे के काम को सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट कर सके। दोनों के पास कुछ रिसोर्सेस है, दोनों के पास नॉलेज है, दोनों के पास कम्युनिटी से एक कनेक्शन है, रिलेशन है, कैसे हम उसको लिवरेज कर सके। धीरे धीरे हमें ये भी समझना होगा कि हम बाकी के स्टेक होल्डर्स को भी छोड़ नहीं सकते। जैसे कि आपका इंश्योरेंस कंपनी है, आपका बैंक है, आपके सीएसआर ग्रुप्स हैं, आपके बहुत सारे क्लब काम कर रहे हैं, बहुत सारे जाति आधारित जो ग्रुप होते हैं वो काम करते हैं। जैसे मैं गुजरात का एग्जांपल दूं तो यहाँ पटेल समुदाय के लोगों का अपना एक बड़ा ग्रुप होता है, वो लोग काम करते हैं। किसी भी आपदा में सबसे पहले जो अगर खाना लेके निकलते हैं, कुक्ड फूड लेके निकलते हैं, फूड पैकेट लेके निकलते हैं, तो वो वही लोग निकलते हैं। तो हमें वो स्टेक होल्डर को भी समझना है, उन्हें भी छोड़ना नहीं है, और उन्हें इस पूरी प्लानिंग में शामिल करना है। तभी हमारी जो ताकत है वो बढ़ेगी और हम और ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। नेक्स्ट, फिर हमें ये समझना होगा कि जो भी तैयारी हमने की उसको रेगुलर ड्रिल करते रहे। मान लीजिए कि अगर किसी को आपने स्विमिंग सिखाई, तो अगर आप रेगुलरली उसका स्विमिंग का मॉक ड्रिल नहीं करते रहेंगे तो वो भूल जाएगा। या कहाँ पे क्या मटेरियल है। शुरुआत में कुछ ऐसा भी देखा गया था, जब ये साइक्लोन शेल्टर बनाए गए, तो साइक्लोन शेल्टर शुरुआत में काफी जगह पे एनजीओ ने उनको काफी खड़ा किया, उसमें सपोर्ट किया। तो पता लगा कि वो साइक्लोन शेल्टर की चाबी तो एनजीओ वर्कर के पास में है, और रात में वहां साइक्लोन आया और लोग पहुंचे तो वहां ताला तोड़ना पड़ा उन्हें साइक्लोन शेल्टर का। तो रेगुलर ड्रिल ये होनी चाहिए कि भाई किसके पास हेल्पलाइन नंबर है, कौन हेल्पलाइन नंबर को कॉल करेगा, कौन हेल्प मदद मांगेगा, कैसे वो मदद उन तक पहुंचाई जाएगी, और एरिया वाइज कौन सा वार्ड मेंबर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस वार्ड मेंबर को खुद को पता होना चाहिए कि मेरा ये रोल है, या वो कमेटी मेंबर को खुद को पता होना चाहिए कि मेरा ये रोल है। या जिस फैमिली में भी आपने सामान रखा है, या जिस गोडाउन में भी आपने सामान रखा है, वहां के जो इंचार्ज है उन्हें पता होना चाहिए कि ये सामान इमरजेंसी में यूज होना है। तो रेगुलर आपकी ड्रिल्स होनी चाहिए, ताकि सबको अपना रोल, और जितना भी सामान है उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होता रहेगा। अगर आप रेगुलर ड्रिल नहीं करेंगे तो बहुत सारा सामान आपका डिसफंक्शनल हो जाएगा। तो वो करना बहुत जरूरी है। और बहुत बार नए स्टेक होल्डर भी ऐड होते हैं ना। जैसे मान लीजिए नई जनरेशन आ रही है, नए स्टाफ आते हैं, नए लोग आते हैं, तो आप रेगुलर ड्रिल नहीं करेंगे तो नए लोग उसमें आपके इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। पुराने लोग, कई लोग रिटायर्ड होंगे, कई लोग जॉब छोड़ के जाएंगे, कई लोग गांव चेंज करके जाएंगे, या कई लोग इलेक्शन हार के नई टीम आ जाएगी। तो अगर नए लोग जुड़ेंगे तब तो आपको बराबर रेगुलर ड्रिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट,
फिर ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा जो काम है ये होना चाहिए। तो हमारे डीएम प्लान में जो भी बात हम रखते हैं, जो भी हम तैयारी रखते हैं, वो सब इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिर रिव्यू एंड अपडेट। जो भी हम काम कर रहे हैं उसको रिव्यू करना होगा, और अगर रिव्यू करके उसको रिफाइन करने की जरूरत है तो उसको रिफाइन करना होगा, और टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा। आज जो आपने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है वो 1 साल बाद शायद रेलेवेंट ना हो, तो टाइम टू टाइम आपको उसको वापस रिफाइन करके अपडेट करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर किसी का कोई सवाल हो, और ये मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी पार्टनर्स इसको नोट कर लें। कभी भी आपको लगे कि सीट्स आपके एरिया में आके आपको सपोर्ट कर सकता है, टेक्निकल सपोर्ट पहुंचा सकता है, तो वी आर वेरी हैप्पी टू सपोर्ट। Thank you so much, Divya ma'am. So thank you very much, Divya ma'am, for setting the context as well as also giving us a very brief pre-requirements like how we can make ourselves ready to face such challenges. Or I would also like to welcome, there are some IAG members from different states also, those who are here. I think they too will have a very vast understanding and knowledge about disaster. तो हम जैसे ही अपने स्पीकर्स को का सेशन खत्म हो जाएगा, हम इनसे भी सुनना चाहेंगे जो कि दूसरे स्टेट्स में वहाँ के हालात कैसे हैं एंड हाउ दे have been facing such challenges. So thank you very much, Divya ma'am. थैंक यू। Yeah, so I ask Hannah to call the second speaker. Thank you so much, sir. So now I would like to call Ms. Devadrita Sengupta ma'am. She will be talking more on the challenges that we NGOs face in interagency coordination, mostly on an NGO perspective. Ma'am, over to you. Yeah, Hannah, could you display the presentation? In the meantime, I mean, thanks to my previous speaker, I was very happy to see the preparedness points, especially the summary points she mentioned at the end. Divya ji ko bahut bahut dhanyawad, because those are some of the things that I'm going to come back to. वहां पे भी नहीं जा रहा, नहीं वो लोग भी टोक देते हैं। जी, जा रहा होता तो टोक देते हमको। जी। Ma'am, please go on. I think that was disturbance. All right. So I'll be coming back to those points later on once I finish talking about the challenges and the learnings. मैं कोशिश करूंगी हिंदी में ही ज्यादातर बात करने के लिए, पर अगर कभी मैं इंग्लिश में चली जाती हूँ तो बिना हेजिटेशन पे आप हमें रोक के बोल सकते हैं कि हिंदी में वापस आने के लिए। जब हम लोग कोई ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्लान करते हैं तो वहाँ पे काफी सारे चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं। कभी हमारा अपना पहचाना हुआ, जाना पहचाना हुआ इलाका होता है जहाँ पे हम लोग पहले से काम कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंप्लीटली डिफरेंट इलाका हो। जैसे साइक्लोन बिपरजॉय की बात आप लोग कर रहे थे, तो साइक्लोन बिपरजॉय पहले गुजरात में आया, उसके बाद राजस्थान में आया। तो किसी किसी का जैसे हम लोग के लिए, बाल रक्षा भारत के लिए, राजस्थान में जहां जहां पे आया वहां पे बहुत जाना पहचाना इलाका ना भी हो, लेकिन राजस्थान में हम लोग बहुत दिन से वर्तमान है, काम कर रहे हैं, लोगों को जानते हैं, एटलीस्ट पीयर ऑर्गेनाइजेशंस कौन कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं उनको, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे आसानी से डिस्कशन कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। गुजरात हमारे लिए बहुत पहले इंटरवेंशन एरिया हुआ करता था, और इस बार तो जहाँ पे हुई कच्छ मंडी, वहां पे हम लोग का एकदम ही जाना पहचाना इलाका था ही नहीं वो। तो हम लोग को वहां पे एकदम पहले से जाके बेस एस्टेब्लिश करना पड़ा। हमारे एम्प्लॉयज कहाँ पे रहेंगे, सेफली रह पाएंगे कि नहीं, 72 आवर्स के अंदर हम लोग को पहले ही बेनिफिशियरी को रीच करना है, उसका मैंडेट को देखना, फिर वहाँ का एग्जैक्ट असेसमेंट क्या है, क्या सिचुएशन है, कितने लोगों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं, डैमेज क्या हुआ है, कि कौन से सेक्टर को डैमेज हुआ है। तो
बाकी लोग क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा आ रहा है, कौन सा चीज में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, गैप आ रहा है। तो ये बहुत सारा कुछ जानना समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं क्या कोशिश करूंगी ना, मैं कोशिश करूंगी जितने इम्प्लीमेंटेशन के फेजेस हैं एकदम शुरू से लेके, जैसे कि हम लोग असेसमेंट से शुरू करते हैं कि कहाँ हुआ है, कितना हुआ है, क्या चाहिए है, क्या मिल चुका है, क्या नहीं मिला है अभी तक, वो जो असेसमेंट के फेज है वहां से लेके जो ऑपरेशंस वाली फेज है वहां में क्या सोच सकते हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग जब क्लोजर कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग क्या चैलेंजेस, क्या लर्निंग्स हमारी हुई है, वहां पे जैसे जा सकते हैं। बट एक चीज मैं शुरू से अंत तक आप लोगों को बोलती रहूंगी, आप लोग परेशान भी हो जाएंगे कि एक ही बात क्यों बोल रहे हैं, कि जब तक हम लोग एक साथ मिलके काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे, पार्टनरशिप रखेंगे, तब तक ये बहुत सारे चैलेंजेस को हम लोग बहुत आसानी से इससे उभर के आ सकते हैं, इसको मिटिगेट कर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। अगर हम लोग पीसमिल इंटरवेंशन की बात करते हैं तभी सबसे ज्यादा चैलेंजेस हमारे सामने आ जाती है। तो गोइंग इनटू द मेन प्रेजेंटेशन, हैना, कैन वी गो इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे लिए जैसे बाल रक्षा भारत आप लोगों को पता है, आप लोग सेव द चिल्ड्रन के नाम से जानते होंगे। तो भारत में हम लोग बाल रक्षा भारत के नाम से जाने जाते हैं, ग्लोबली वी आर सेव द चिल्ड्रन। और हमारा जो जो भी काम है, एट द हार्ट ऑफ ऑल आवर इंटरवेंशंस इज द फैक्ट दैट वी नीड टू एंश्योर चिल्ड्रन कंटिन्यू टू सर्वाइव, थ्राइव एंड आर प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग एनी क्राइसिस, और ड्यूरिंग एंड डेफिनेटली पोस्ट डिजास्टर सिचुएशन में भी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं कोशिश करूंगी आपको बताने के लिए कि हम लोग क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं और क्या क्या सीखे हैं, और आप लोगों के सामने अगर कोई सोल्यूशन है, कोई ऑल्टरनेटिव बातें आप लोग सजेस्ट करना चाहेंगे तो वो भी जानने का इंटरेस्ट रहा है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम लोग पहला जो फेज को डिनोट किए हैं वो है असेसमेंट की फेज। अगर हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और कहाँ हुआ है और कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं, किस तरीके से अफेक्टेड हुए हैं, उनको चाहिए क्या है और क्या ऑलरेडी मिल चुका है और किस सोर्स से, तो ये अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे वहां जाके, और कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे वहां पे जाके, किससे बात करेंगे, ये सारे के सारे चीज थोड़ा मुश्किल में आ जाता है। तो दो चीज हो सकती है, जब हम लोग शुरू कर रहे हैं, कई क्राइसिस की इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ जाना जरूरी है, या फिर अ, ज्यादातर टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, पहले ही डिसीजन नहीं ले लेते हैं। अगर इफ इट इजंट अ वेरी बिग स्केल डिजास्टर, देन ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, वो लोग पहले मॉनिटर करते हैं सिचुएशन को कि हो क्या रहा है, what is the magnitude of the disaster, what is the scale of the disaster, how much the community can come out of it by themselves, how much the state government or local actors are able to come out of it by themselves, and how much outside intervention is required in case it is not our own intervention area. If it is our intervention area जहाँ पे हमारी फुटप्रिंट पहले से है, तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन पहले से रहनी जरूरी होती है। जैसे दिव्या जी भी बोल रही थी कि हम लोग जब प्रिपेयरनेस की बात करते हैं कहीं पे भी हमारा जहाँ पे इंटरवेंशन हो, तो बहुत जरूरी है कि वहां पे हमारा क्या रिसोर्सेस है वो एक बार मैप कर लेना। कोई रिस्क है, कोई हजार्ड है, क्या है, वो मैप कर लेना बहुत जरूरी है। ये जब हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं और हमारे पास इन एरिया का एक्सेस नहीं है, क्योंकि पहला जो चीज होता है ना, जब जब भी कोई डिजास्टर होती है तो पहला जो तीन चीज डैमेज होती है वो है, एक तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, एक तो आपका पावर लाइंस जाती है, स्पेशली अगर आप कोस्टल बेल्ट की बात करेंगे और साइक्लोन्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली पावर लाइंस, हाई विंड स्पीड, और आपका कम्युनिकेशन चैनल्स भी गड़बड़ होती है। हाँ, definitely it's a different scenario when we're talking about drought or heat waves, but even then there are certain cases where if it is a very high temperature zone, then road infrastructure is affected. Now अगर आपका एरिया तक एक्सेस है और आप जा पा रहे हैं, आपका लिंक है या फिर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, then getting the information becomes a little easier. However, अगर आपका एक्सेस कट ऑफ हो जाता है तो वहां पे अगर if it is an area where you already have footprint, it is easier to get information
बिकॉज वहां पे अगर आप प्रिपेयरनेस के दौरान आपने मैप करके रखा है कि क्या कैसे सोशल ग्रुप के लोग वहां पे रहते हैं, क्या क्या यूजुअल वल्नरेबिलिटीज है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां पे हो सकती है, what are the best ways to reach the location, how remote the location is, who are the people who live there, what are their characteristics, vulnerabilities, हाँ कैसे वो अफेक्ट हुए होंगे, उनके जरूरी कॉन्टेक्ट नंबर्स अगर कुछ है तो वो आपके पास ऑलरेडी हो चुका होगा। प्रॉब्लम हो जाता है जब आप इंटरवेंशन एरिया आपका खुद का नहीं है। In that case, you need to identify local organizations with whom you can establish a process of collaboration and partnership. Doesn't have to be formal partnership, doesn't have to be financial partnership. It can be something very simple like we are working together. आप अगर ये वाला एरिया देख लेते हो तो मैं ये वाला एरिया देख लूंगी, अगर आप ये वाला सेक्टर में सपोर्ट देते हो तो हम ये वाला सेक्टर में सपोर्ट कर देंगे। तो इट कैन बी सिंपल non-formal, non-financial, casual collaborations also. But if you, it is always better if we can identify people who can give you authentic information. Now, there is one more trade-off over here that we need to always understand. एक, अगर आप बहुत जल्दबाजी करोगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन सही नहीं रहेगा, अगर आप बहुत टाइम ले लोगे तो इंफॉर्मेशन बहुत सही रहेगा आपके पास, लेकिन आपका जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जो जो सर्वाइवल वाला जो नीड्स है वो पहुंचाना लोगों के लिए, लोगों के पास टाइम पे पहुंचाना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको वो बहुत बैलेंस में करके, इसीलिए ये जो चैलेंज है ना, गेटिंग ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राउंड, understanding exactly who we are working for and what exactly are the gap areas that has not been responded to by any other organization, वो समझने के लिए बहुत कम टाइम हमारे पास आते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको मिटिगेट करने के लिए, ये चैलेंज मिटिगेट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, कि हम लोग आइडेंटिफाई कर ले कि लोकल पीयर ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा यूएसपी है उन लोग का क्या हो सकता है जो उनका यूएसपी है, एंड हम लोग एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। सो each time you are identifying a challenge, it can be overcome if you only come together and put your strengths on the table. दूसरी बात जो है, अपना फुटप्रिंट वाला एरिया है तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हमारे एक्सेस में काफी सारा होता है, बिकॉज अगर हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे और एक्सपीरियंस्ड है उस जगह के कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो हमारे पास कुछ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन रहता है। लेकिन अगर अपना पहचाना हुआ नहीं एरिया है तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास सही से ढंग से नहीं होता है। कभी कभी हम लोग बहुत कोऑपरेटिव लोकल स्टेक होल्डर्स मिल जाते हैं जो जिनसे हमें ढंग का इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जिसके बेसिस पे हम लोग काफी एक्यूरेटली अपना जो पूरा रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी है उसको बेस कर सकते हैं, उसको फाउंड कर सकते हैं। कभी कभी वो वाला इंफॉर्मेशन हमारे पास होता नहीं है, एंड इन दैट केस वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन newspaper reporting, verbal communication, and in those particular cases it is very important we go to the ground as soon as possible to get more authentic information. One very good thing that comes up, if there is a IAG and there is also Sphere presence there, if only we can do a joint rapid need assessment and within that particular time frame, अगर आप JRNA करने के लिए 3 हफ्ता लगा देते हो तो उसमें कोई फायदा होता नहीं है। I remember Father Vishal was talking about fund mobilization, resource mobilization right at the beginning of this session. एक चीज क्या होती है ना, अगर आपको फंड मोबिलाइज करनी है, रिसोर्स मोबिलाइज करनी है, तो आपको ना बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डोनर को देना होता है। जो ऑथेंटिसिटी कहाँ से आती है, अगर आप JRNA रिपोर्ट सबमिट करते हो तो उसमें क्या होता है ना, देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सबमिटिंग देयर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने जो असेसमेंट किए हुए हैं वो उनको स्फीयर को दे रहे हैं। स्फीयर इज कंसोलिडेटिंग, वो इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके अपने ब्रांड में वो दे रहे हैं। एंड जिस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, दैट ऑल्सो स्फीयर अपना एक टूल देती है। तो हम लोग हर कोई अगर वही टूल यूज करते हैं तो सिमिलर टाइप का इंफॉर्मेशन उठ के आता है। एंड सिंस इट इज a public domain document, since Sphere is also putting the brand on it, तो वो डोनर को ना बहुत मतलब ऑथेंटिक वो मानते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं इसको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बोल के। तो अगर हमारा JRNA पहला 1-2 हफ्ते के अंदर तैयार हो जाता है, वी हैव इट इन हैंड, इट इज ईजियर टू कनेक्ट टू डोनर्स, इट इज ईजियर टू मोबिलाइज रिसोर्सेस, है ना। इसीलिए असेसमेंट हम लोग को जितनी जल्दी हो सकता है, provided we do not compromise with the quality of information,
असेसमेंट्स हम लोग जितनी जल्दी कर सकते हैं वो हमारे लिए अच्छा है। एंड वन ऑर्गेनाइजेशन नहीं, पीसमील नहीं, अगर हम लोग एक साथ मिलके कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएजी और स्फीयर, तो उससे क्या होता है, सिमिलर इंफॉर्मेशन चारों तरफ से आता है, तो इट बिकम्स अ कंसोलिडेटेड होल। आप मान लीजिए अगर बाल रक्षा भारत ने डूंगरपुर के लिए किया, किसी और ने जैसलमेर के लिए किया, किसी और ने जोधपुर के लिए, किसी ने उदयपुर के लिए किया, तो हर किसी का अगर किसी सेंट्रल लोकेशन पे आता है तो ऑटोमेटिकली यू गेट अ assessment report for Rajasthan. You don't have to wait for any other thing. You can immediately use it to mobilize resources. You can immediately use it to make your response strategy. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहां पे एक चैलेंज हम लोग के लिए ये आता है कि अगर असेसमेंट सही ढंग से नहीं हुआ और अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं ढंग से रहा तो फंड मोबिलाइजेशन भी बहुत चैलेंजिंग यहाँ पे हो जाता है। हना, कुड वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? थैंक यू। दूसरी बात है कि अभी हम लोग जब इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं, ऑपरेशंस को देखते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, एक तो है कि हर कोई एक जगह पे चले गए, कोई एक दूसरा जगह रह गया जहाँ पे भी डिजास्टर हुई है लेकिन कोई गया नहीं, एक ऐसा होता है। दूसरा एक ऐसा होता है कि हर किसी ने से वॉश पे इंटरवेंशन कर दिया या फिर एजुकेशन पे कर दिया या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन पे कर दिया, लेकिन दूसरा कोई सेक्टर रह गया बाकी जिसमें किसी ने मतलब सपोर्ट किया ही नहीं। तो इस तरीके के डुप्लीकेशन और रिसोर्स वेस्टेज को कम करने के लिए दिस इज अ मेजर चैलेंज, एंड इसको कम करने के लिए भी हम लोग जितना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो नहीं भी इम्प्लीमेंट करे लेकिन वहां पे लोकली वो है, या फिर सपोर्ट कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, टेक्निकली सपोर्ट कर सकते हैं, फिनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग को एक दूसरे के साथ बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, स्पेशली प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट डिजास्टर सिचुएशन में। एंड उसको फैसिलिटेट करने के लिए भी नेटवर्क बॉडीज लाइक आईएजीज आर एक्सीलेंट। इन केस आईएजी इज नॉट देयर, then some network will be there in that particular state which has brought together a number of organizations. We can utilize those networks also, but it is very important, very critical that we understand who is going where and who is doing what, otherwise it becomes a big challenge. मान लीजिए तमिलनाडु में सुनामी के टाइम पे एक बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट करा था, एंड उसके बाद जब इवैल्यूएशन हुआ देखा गया, देयर वाज दिस वन वेरी फनी पॉइंट, बात मतलब इतना भी फनी नहीं है, मतलब सैड भी है अगर आप सोचे तो किसी फैमिलीज को कुकिंग यूटेंसिल्स बहुत ज्यादा मिला, 20 सेट्स मिला, और उस फैमिली को आपका जो हाइजीन मटेरियल्स है वो मिला ही नहीं। और एक जगह में जाके देखा गया कि बहुत सारे हाइजीन किट्स उनको मिल गए, उस फैमिलीज को, उस जगह के फैमिलीज को, और उनको कुकिंग किट्स का कुछ अता पता नहीं है। तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम्युनिकेट टू ईच अदर कि हम लोग क्या करना चाहते हैं और कहाँ करना चाहते हैं और किसके साथ करना चाहते हैं, एंड उसके लिए हमारा एक नेटवर्क, एक प्लेटफॉर्म रहना बहुत जरूरी है जहाँ पे हम लोग ये बातें कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर हम लोग नए जगह में जा रहे हैं तो वहां पे इमीडिएटली हम लोग को बेस सेटअप करना होता है ना। हम कोई अकेला तो जाके नहीं करेगा हर काम, तो वहां पे एक ऑफिस स्पेस सेटअप करनी होती है, आपको वेंडर्स देखने होते हैं, मार्केट है कि नहीं देखने होते हैं, वेंडर्स के साथ आपको, अगर आप पेपर वर्क ही सिर्फ देख ले तो आपको, अगर आप ऑडिट रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करना चाहते हैं, आपका डोनर का रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करना चाहते हैं, तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ पेपर वर्क ऑल्सो। तो उसके लिए आप लोग को बहुत सारा काम करना होता है बहुत शॉर्ट टाइम में, वेयर हाउसिंग देखना होता है, स्टॉक मैनेजमेंट देखना होता है, वेंडर को असिस्ट करना होता है, मार्केट कौन सा लेंगे आप, वहां पे आपको सही तरीके से आपको बिल्स वगैरह सब मिलेंगे कि नहीं, आपको लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करना होता है, आपका आपके पूरा टीम वहां पे जाके रहेगा, सो सेफली रह पाएंगे कि नहीं, वहां से जाके काम कर पाएंगे कि नहीं, द ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू सेट अप इन अ हरी। तो दैट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज अगर आपको इलाका पता नहीं है और कोई भी आपका कोई कॉन्टेक्ट पॉइंट वहां पे नहीं है, तो देयर ऑल्सो नेटवर्क्स can help a lot. I remember when we started work in Manipur after Manipur earthquake 2016 में, हम लोग को वहां पे कोई मतलब जाना पहचाना नहीं था। आई थिंक आई मेक द फर्स्ट कॉल टू स्फीयर कि अगर आपका कोई भी कांटेक्ट पॉइंट है मणिपुर में तो प्लीज बताइए, एंड वी वर्कड विद आईजी मणिपुर वेरी क्लोजली
during that entire response. I remember I first met Kennedy over there. And then for this Gujarat response also, the IG was particularly helpful, very cooperative. And we discussed with them, I think, throughout the entire course of our time spent there, we discussed with them whatever we wanted to do, got their suggestions, got their advice. And, that made our lives easier, much easier. So that is one point. Second thing, आप community में जा रहे हैं, अगर आप सिर्फ अपनी बात करके चले आएंगे तो एक तो है कि अगर अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है, हम लोग जब कोर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो उसके फॉर्मेट में ये नहीं रहा, हम लोग बस गए, बात करें, सामान देके चले, दैट इज नॉट द वे टू डू थिंग्स. वी नीड टू एंश्योर दैट कम्युनिटी को भी अपनी बात रखने का, अपना साथ देने का अपॉर्चुनिटी मिलता है. सेकेंड थिंग इज, वो करने से आपका इंक्लूशन भी आता है, यानी कि जिनका वॉइस आप एकदम विजिबल नहीं है लेकिन वो लोग है गांव में, आपको पता है या फिर आप ढूंढ रहे हैं, तो वो देखना, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली पूछ के देखना, उनको, उनका वॉइस को हियर करना भी बहुत जरूरी है. अकाउंटेबिलिटी इज अ वेरी वेरी बिग थिंग. अगर हम लोग गए और बस सामान देके चले आए, दैट इज नॉट द वे टू डू थिंग्स. वो तो कैसे भी कर सकते हैं, उसके लिए इतना बड़ा सेटअप करने की, इतना बात करने की, इतना डॉक्यूमेंटेशन, इतनी चीज की तो जरूरत नहीं है. लेकिन वी आर अकाउंटेबल फॉर टू व्यूमर वी आर वर्किंग फॉर, है ना. हम लोग अगर बच्चों के लिए काम करते हैं तो उनके लिए हम अकाउंटेबल है. अगर आप महिलाओं के लिए काम करते हैं तो आप महिलाओं के लिए अकाउंटेबल है. आप खुद के लिए भी अकाउंटेबल है, आप डोनर के साथ भी अकाउंटेबल है, क्योंकि आप उनसे फाइनेंशियल रिसोर्सेस लेके ये पूरा रिस्पॉन्स प्लान कर रहे हैं, है ना. तो how we can express that accountability and ensure that the community has a place to go if they are not happy with us. So that is also something, because ये उनका right है, ये हम लोग कुछ उनको दान में नहीं दे रहे, खैरात में नहीं दे रहे, तो ये उनका right है मिलना. तो उस हिसाब से जब हम लोग जाएंगे तो इंक्लूशन एंड अकाउंटेबिलिटी को याद रखना बहुत जरूरी है, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग भी है. जैसे one of our responses, we kept on asking people कि आप मतलब सारे के सारे ग्रुप्स है कि नहीं. We kept on asking different groups and all they kept on saying कि हाँ हाँ सबको पता है, सब सुन रहे हैं, सब पता है. Then one day, right before the distribution, we took a walk कि entire village को एक बार घूम के फिर से देख के आते हैं. And we discovered there were still some households who hadn't heard कि हम लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं था. तो inclusion is a very very big challenging thing within that particular time frame, because हम लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं. एक तो 72 आवर्स का मैंडेट होता है, जैसे हम लोग का 72 आवर्स का मैंडेट होता है कि एटलीस्ट कुछ लोगों तक आप पहुंचो, तो एक ये होता है. दूसरा है कि जितनी जल्दी आप सामान उनके तरफ पहुंचा पाओगे, सपोर्ट उनको पहुंचा पाओगे, तभी उनका मतलब कुछ हल होगा ना. तो सर्वाइवल नीड्स होती है, जो भी मतलब उनको चाहिए होता है उस टाइम में, बहुत जल्दबाजी में चाहिए होता है. तो इतना सारा सब कुछ हम लोग हमेशा हमारे दिमाग में रहता नहीं है, बट इट हैज टू बी पुट देयर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एसओपी. जब हम प्रिपेयर्डनेस में काम कर रहे हैं, प्रिपेयर्डनेस में ये भी एक चीज होना है कि हम लोग इमीडिएटली आफ्टर द ट्रिगर इज देयर, हम लोग करेंगे क्या स्टेप बाय स्टेप, एंड सम वेरी स्पेसिफिक थिंग्स दैट ये हम करेंगे इंक्लूजन को एंश्योर करने के लिए, ये हम करेंगे अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करने के लिए, तो लाइफ इजियर हो जाता है. अगर डिजास्टर के बाद आप फिगर आउट करने जाओगे तो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. Excuse me, ma'am. Sorry for interrupting you, but if you can cover the slides a bit faster, we are overshooting time. All right. So the next point is about the right kit. अगर आप जितना बात करोगे उतना आपको समझ में आएगा कि आप right चीज उनके लिए सामान ले रहे हो कि नहीं, right items उनके लिए ले रहे हो कि नहीं. और सबसे बड़ी बात है कि आप जो ले रहे हो वो आप उनको बता रहे हो कि नहीं कि वो सामान किस चीज के लिए दिया गया है. There was this incident at one point of time we faced, and it was a great learning opportunity for us also. We were giving, we thought we were being very environment friendly. We were giving menstrual hygiene cloth, simple cotton cloth of 2 meters, 2 pieces each in the hygiene kit. And since there were a lot of mixed beneficiaries, mixed gender beneficiaries, we did not
tell very clearly ki this is the purpose is this. And then we went back for post-distribution monitoring, and there was this lady we met who had actually thought it was for garment. So she had sewn a blouse and she was wearing it. And we were very surprised, shocked, but that gave us a big slap on the head, that we learned that next time onwards, we made a clear demonstration of each of the items, that it should not become a challenge for the community as well. It's not only whether we are facing the challenge, it's also a challenge for the community. If we don't tell them what exactly we are intending, and if we don't take their wishes also into consideration. The next point is definitely about the beneficiary. Sometimes people will go for blanket distribution. Sometimes people will not go for blanket distribution. In case it is not a blanket distribution, it is becoming a big challenge to ensure that all data, pertinent data is with you, at least till the response is over. But after all, if you follow the data protection laws of India, data confidentiality is a very, very big issue. And in that case, we almost always collect a lot of sensitive information. And then how do we disburse with that sensitive information? How do we keep that sensitive information confidential even after we have come out of the response is a big challenge that we need to face. The final thing is managing the distribution in a site that is safe, that is easily reachable by the community, which is easily accessible from the warehouse or from our vendor location. And that is also a big challenge that we can easily solve if we work with the community on deciding each of those elements. Then there is another challenge that we face if there is a cash voucher assistance program in our responses, like funds transfers. Most of the time, the community might have bank accounts, but they are usually dormant because people are not very active in maintaining their bank accounts. So fund transfer becomes a very big challenge. In that case, if we are intending to put a CVA component in the response plan, while we are working on the beneficiary database, at that particular time itself, it is useful to go through the bank details also. But please remember again, it will come under the confidentiality clauses, because under the data protection laws, under those legal provisions, sensitive personal information, we cannot, put in a public domain. Most of the time when we are sending emails or putting up information in the cloud server, we do not look at the security clauses. But that is something that you need to consider before you put other people's personal information there. Hannah, the next slide, please. So this is the last part of the challenges and learnings space. When you're talking about, continuing that confidentiality dialogue, photos and videos that you are taking while you are doing the response is sometimes used much, much beyond the response as well. For example, we use the kind of vulnerability that we have seen, those photos and videos we use. We use photos and videos of men, women, children, that they are saying something, that they're giving testimonials or talking about their vulnerabilities. So all those photos and videos, again, if they are showing your face and your location correctly and properly, then there has to be consent, written consent legally. You have to be very, very vigilant on how you maintain those sensitive information, because publishing photos and videos of people, especially children, without their consent is illegal in India. So when you are closing out the operations, when you are exiting the response, then you have to understand how to ensure that sensitive personal information that has been collected remains confidential and it's not getting there is no chance of leaking out or anything. And of course, post-distribution monitoring is sometimes a big challenge, as I mentioned earlier, like the sanitation cloth incident that we faced, but there are some amazing learnings as well. However, again, once we understand what are the challenges and what are the learnings from those challenges, how we overcame those challenges, how we mitigated those challenges,
So that process can actually feed into the next phases preparedness exercise. Hannah, if you could go to the next slide. Thank you. So I have just put in some letters over here. It must be आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या letters है. पहला है कि ए अगर हम लोग बताते हैं एंटिसिपेटरी एक्शन. अगर हमें पता है कि ये चीज होने वाला है, हर साल होता है, इस टाइम होता है, तो why don't we anticipate that action, anticipate that crisis and take some action beforehand. ये है ना. जैसे अगर हमें पता है कि अप्रैल मई में हम लोग हीट वेव देखेंगे एंड इट विल रीच इट्स पीक इन अप्रैल मिड अप्रैल एंड अप्रैल, तो हम लोग क्यों ना हीट वेव के लिए मार्च से काम करना शुरू कर सकते हैं. दैट इज preparedness, but more specialized preparedness targeted towards one particular crisis. Nexus. And ये क्या चीज है? This is also something that can help us in future interventions. अगर आप कहीं पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे दिव्या जी बोल रही थी, वहां पे आप रिस्क रिडक्शन का भी काम अगर करते हैं, तो it is much easier to mitigate the scale of the disaster. It is much easier to respond to whatever has happened. Because you already have the information, you already have the data, much time is reduced in terms of where you go, where to get information, how to do assessment and all that. And you immediately can get into the response thing. And once you come out of the response and you come back to the development thing, you get that entire experience to, shape your next preparedness interventions, next set of preparedness interventions. And of course, something very new that is coming up now in the discussions globally is collective outcomes. Like, I know there will be humanitarian crisis in this context. I know we are working in development interventions in this context, in this particular area. And why don't we think of collective outcomes, something that will, when we are working in the development intervention, it will work as the outcome for our development intervention. If there is a crisis in that particular area, we seg into the humanitarian response using the same outcome, and then we seg out of the humanitarian response and come back to the development intervention with minimal transition shock, if you could say, ताकि आप streamline करके बाहर निकल के आ सकते हैं. It is much easier on the people and it is much easier on the communities and the organizations working for them as well. Thank you. So thank you very much, ma'am. आपने बहुत ही संक्षेप में और आप बहुत ही अच्छे से आपने हमको समझाया. एंड वेरी स्पेशली आपने एक बात पर यहाँ पर बहुत अच्छा जोर दिया कि हमारा वर्क कलेक्टिव नहीं है. हम काम कर रहे हैं इस फील्ड में, बट देन व्हाट वी आर डूइंग इज दैट व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग आई एम डूइंग इन माय एरिया एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग. व्हाट इज देयर अंडरस्टैंडिंग एंड द इमीडिएट नीड एंड देन दे डू इट. सो आई थिंक ये आईएजी प्लेटफॉर्म इसीलिए बना था ताकि हम कलेक्टिवली वी कम टुगेदर and plan something. How can we send immediate relief to our beneficiaries, the people we are working for? So thank you very much, ma'am, for sharing your knowledge as well as an experience. आपके experience से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम कई बार कोई भी सामान जो immediate need होती है हम उनको लोगों को दे देते हैं, but then we don't demonstrate and then we don't tell them that how to use the hygiene kit or maybe whatever we are providing them. वो आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी. सो थैंक यू वेरी मच मैम. सो हमारे बीच में अब धनंजय हैं. धनंजय ऑब्वियसली यूनिसेफ से हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं एंड हम आगे आपसे सुनना चाहेंगे सर. सो धनंजय प्लीज. हाय, सॉरी फॉर द डिले. मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था खुद को. हाँ जी, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो. या धनंजय. सभी को नमस्कार. मैं धनंजय हूँ.
और मैं यूनिसेफ के साथ में इधर राजस्थान में एज अ कंसल्टेंट क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम कर रहा हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा फादर विशाल का, जो काफी समय से आईजी के साथ में जुड़े हुए हैं और उसे कन्वीन कर रहे हैं, तो और दिव्या जी का, जिनके स्पिरिट डे के साथ में मैंने अपना डीआरआर का जर्नी स्टार्ट किया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके जुड़ के। एंड देवर धृता जी का, जिन्होंने अभी काफी डिटेल सेशन दिया। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो पुराने स्पीकर्स ने जो टॉपिक्स टच किए हैं उन्हें वापस इतना ना बोलूं और कम समय में अपना सेशन कंप्लीट कर सकूं। इसको स्टार्ट करते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क हमारे ग्लोबली हैं, और जो हमारी रेजिलियंस है वो इन यूनिसेफ वी बिलीव इज लोकल, कि हमारे वो ग्रास रूट से आनी चाहिए। और इसीलिए अगर हम रेजिलियंस की डेफिनेशन में मैं अभी नहीं जाऊंगा, मगर ये जो दो चीजें होती है, शॉक्स और स्ट्रेसेस, स्ट्रेस हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, और एज यूनिसेफ हम बच्चों के साथ में, औरतों के साथ में, मोस्ट वल्नरेबल जो है आखिरी छोर पर, उनके साथ में काम करते हैं, ताकि उन्हें स्ट्रेसेस और जो बाद में शॉक्स आते हैं उन दोनों के लिए हम तैयार कर सकें। अभी मैं अपनी स्लाइड्स कुछ आगे ले जाते हुए सीधा कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म पे आना चाहूंगा। तो इसमें अगर मैं, मेरा जो टॉपिक था उसमें कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को हम कैसे बेहतर कर सके, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो सके, तो उसके रिलेटेड कुछ मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं जो पहले स्पीकर्स ने भी कवर किए हैं। मैं उसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। पहले तो मैं आईएजी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि जैसे हमने 2019 में वापस में एक बार रिकन्वीन हुई, फिर हमारी एक स्टेट लेवल मीटिंग हुई डीएमआरसीडी के साथ में, जो कि ऑनलाइन थी, और फिर उसके बाद से हम थीमेटिक सेशंस ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। इसमें यूनिसेफ ने 2023 में मई के अंदर एक क्लाइमेट एक्सट्रीम के ऊपर भी कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज करी थी। अब इसमें मेरा ये सुझाव है कि जो हमारी आईएजी जब से अभी तक रिकन्वीन होने के बाद में फंक्शन कर रही है, इसमें हमारा थोड़ा सा बिखरा हुआ समूह रहा है, जो कि अलग अलग थीमेटिक सेशंस के साथ में आते हैं। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, वो भी पीस टाइम प्लानिंग के लिए, इसी दौरान हमने एक सर्वे भी कराया था जो कि कोविड-19 के बाद में हुआ था। तो उसमें आईएजी के संदर्भ में ये निकल के आया था कि हमारे पीस टाइम प्लानिंग बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, और उसमें हमें इसको आईजी के अंदर से डिमांड आए, वो डिमांड जनरेट करना स्टार्ट करना है। तो उसके लिए एक ये चीज पहल करी गई थी कि हम कुछ कॉमन एरियाज प्रपोज करी गई थी, कि हम कुछ कॉमन एरियाज ऑफ ऑपरेशन सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि डिजास्टर प्रोन ज्यादा हों, बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डेटा, उनको ढूंढ सकें। उधर काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, चाहे वो लोकल एनजीओज हों, ग्रास रूट्स पे इंटरनेशनल एनजीओज हों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सपोर्ट हो, उन सभी को मैप आउट करके एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंच सकें। और उनके इंडिविजुअल रोल्स जो कि वॉलेंटरी बेसिस पे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि रिसोर्स कंस्ट्रेन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन काफी हद तक रहती है, तो उसमें डूइंग मोर विथ लेस, ज्यादा पैसों, कम पैसों से ज्यादा चीजें हम जो करवा सकें कोऑर्डिनेशन के थ्रू, उस पे हम वॉलेंटरी बेसिस पे फोकस कर सके। और इसी में आगे चलते हुए अभी बहुत डिटेल में बात हुई थी डेटा, हमारा पास्ट डेटा, हमारी रिस्क असेसमेंट, हमारी वल्नरेबिलिटीज, और इसमें जेआरएनए का भी फॉर्चुनेटली मेंशन आया था। तो इसमें मेरा एक सुझाव था कि क्या हम जेआरएनए के जो टूल्स होते हैं, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ड्रॉट एक स्लो ऑनसेट कंटेक्स्ट बना हुआ है, जो कि हमारे बहुत सालों से हिस्टोरिकली चलता आ रहा है। तो क्या हम ये टूल अपने पार्टनर एजेंसीज के साथ में शेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं? इससे दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कि जेआरएनए करने की नीड जब पड़े, चाहूंगा कि ऐसा ना हो, मगर हो तो वो टूल ऑलरेडी उनके पास में देखा हुआ है, समझा हुआ है, जितना उन्होंने अभी तक देख के समझा होगा, उसमें चेंजेस भी होंगे तो वो इजीली अडेप्ट हो सकते हैं। और दूसरा, एक बैक ट्रैकिंग हो जाती है। जैसे अभी वॉश फैसिलिटीज की बात हुई थी, उसमें जेआरएनए के अंदर मेंशन होता है कि आपके साफ पानी के सोर्स कितने डैमेज हुए हैं, या आपके और पानी के सोर्स क्या है, कितने टैंकर्स, या बहुत सारे सेफ अनसेफ। तो अगर ये वाले प्रश्न वो देखेंगे जेआरएनए में, जब हमारी पार्टनर संस्थाएं देखेंगी, तो उनकी एक बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं कि अगर हमें डिजास्टर के बाद में ये चीजें इवेलुएट करी जाती हैं, तो शायद ये डिजास्टर से पहले हम इनको सुधारने का, इंप्रूव करने का, स्ट्रेंथन करने का एक प्रयास कर सकते हैं। तो एक ये टूल्स हमारे फ्लड्स पे भी हैं, साइक्लोन पे है, ड्रॉट पे है, और हमारे यहाँ पे हीट वेव एक कंटेक्स्ट है, तो उस पे भी हम आगे चल के देखा जा सकता है। फिर दूसरा, तीसरी चीज पे चलते हुए कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है, ये एक डे टू डे बेसिस वाला सुझाव था, कि हम कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथन करने के लिए केवल हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं, हम जिनके साथ में कोऑर्डिनेशन इवेंचुअली करना पड़ेगा उनकी भी इवेंचुअली धीरे धीरे हम कैपेसिटी इंप्रूव कर पाए। उसके लिए मान लीजिए आप जब भी विजिट पर जाते हैं, फील्ड पर जाते हैं, किसी भी पीआरआई से मिलते हैं, तो एज अ प्रैक्टिस मैं भी ये करने की शुरुआत कर चुका हूँ कि एज अ पेपर मैं ले जाता हूँ। उस पेपर में मैं एक तरफ सारे जो विभाग हैं और जो इंपॉर्टेंट अधिकारी होंगे या कौन से एनजीओज हैं उनको, जिनको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, उन सबकी एक लिस्ट लगा दी जाती है एरिया के हिसाब से। इस तरफ एटलीस्ट उनके नंबर लिख दिए गए हैं, ताकि अगर कभी भी जरूरत पड़े तो उधर पीआरआई को, उधर ग्राम पंचायत में आखिरी छोर पर जो है, उन सभी को पता हो कि किसे कांटेक्ट किया जा सकता है अगर हमारी कुछ भी समस्या आते भी दिखे।
और इसमें सभी को एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर हम ड्रॉट की बात कर रहे हैं राजस्थान में और हमारे ड्रॉट इतने सालों से चलता आ रहा है, तो हम देखेंगे कि कुछ हमारे गांव होंगे जिसमें पिछले 5 साल 6 साल से हर समर में, हर गर्मी के मौसम में पानी के टैंकर सप्लाई होते ही होते हैं, क्योंकि वहां पे ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। तो ऐसे चलते हुए हम एक तरीके से ये असेस कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में अगर कभी पानी की और ज्यादा कमी पड़ी तो ये एरियाज सबसे पहले ड्रॉट प्रोन हो सकते हैं। इन एरियाज में अगर हमारा इंटरवेंशन चल रहा है तो हमारे कौन से वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, कितने बच्चे हैं। अभी राजस्थान में 2021 के सेंसस के हिसाब से 20% आबादी 0 to 6 और उस पॉपुलेशन में थी, जो कि लगभग लगभग 1 करोड़ बच्चे हो गए। अभी वो सेंसस के बाद में बहुत चीजें वो यूथ पॉपुलेशन में आ गए होंगे, तो उनको भी हम एज अ मैपिंग के तौर पे समझ सकते हैं कि ये हमारी वल्नरेबल ग्रुप्स हो सकते हैं और वो तैयार रह सकते हैं। फिर मैं लिस्ट ऑफ वेंडर्स और लास्ट माइल पार्टनर्स में इतना नहीं जाऊंगा क्योंकि ये और डिटेल में कवर कर लिया गया है। मगर अभी हमारे जो नए जिले भी बन गए हैं इनको भी मैपिंग में रखते हुए, इनको दिमाग में रखते हुए, क्योंकि एरिया ऑफ सुपरविजन ऑपरेशन ये भी थोड़ी चीजें चेंज होंगी, तो अब हम आने वाले समय में जो मैपिंग करें अपने पार्टनर्स की और हमारे वेंडर्स की जो सप्लाई करते हैं वो भी इनके हिसाब से धीरे धीरे डिविजन के हिसाब से हम करना चालू कर सकते हैं। और एक और चीज ये थी कि जो आपदा मित्र की स्कीम इधर चल रही है, नरेंद्र जी जो हैं विभाग से वो आज जुड़ नहीं पाए, वरना मैं उनके सामने भी ये रखना चाहता था कि हमने 4700 आपदा मित्र तैयार हुए थे 13 जिले में। उनका आप नाम इसमें देख सकते हैं नीचे। वो आपदा मित्रों को एसडीआरएफ ने बेसिक रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी गई थी, बेसिक नहीं बोलूंगा, काफी डिटेल में रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी गई थी कि फ्लड में से, बोरवेल में से, कहीं पे भी कोई चीज हो जाए कैसे रेस्क्यू किया जाता है। ये हमारा जो यूथ है इसकी कैपेसिटी हम दूसरे तरीके से भी डेवलप कर सकते हैं। और ये हमारे एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में या सुपरविजन में, ऑपरेशन में जो यूथ हैं जो कि ट्रेंड आपदा मित्र होंगे, उनकी हम एक कंपेरेटिव लिस्ट बना सकते हैं। उनके साथ में एक रेगुलर कम्युनिकेशन रख सकते हैं हमारी पीस टाइम प्लानिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए। और इधर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि रेस्क्यू के साथ में उससे पहले जो आपका काम पड़ता है वो सोशल बिहेवियर चेंज और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो अगर ये यूथ को भी उस तरीके से तैयार किया जाएगा तो हमारा वो एनजीओ उस नेटवर्क को लेवरेज कर सकते हैं। और आखिर में चलते हुए आज जो हमने मीटिंग करी मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड एज यूनिसेफ वी रियली अप्रिशिएट दैट। और क्रॉस लर्निंग हुई, मैंने चैट में देखा और भी राज्यों के भी आईजी से जुड़े हुए हैं। तो क्या हम जयपुर में एज यूनिसेफ वी वुड लाइक टू प्रपोज कि हम एक छोटी सी इन पर्सन मीटिंग भी रख सकते हैं, जिसमें हम इसको थोड़ा सा एक्शनेबल मोड पे लेके जाने के लिए भी, कि अगर हम पोस्ट डिजास्टर रेजिलियंस राजस्थान में करना चाहते हैं, शायद हम उसके लिए एक जो हमारे दिव्या जी ने स्टेप्स बताए थे कि हम ये चीजें कर सकते हैं, क्या हम उसको एक कैलेंडर में डाल सकते हैं। उस कैलेंडर के हिसाब से सभी पार्टनर संस्थाओं को हम बताया जा सकते हैं कि मई से जून के बीच में आप ये प्लानिंग कर सकते हैं, उसके बाद में आप ये चीजें देख सकते हैं। जब सर्दियों का मौसम जा रहा है, गर्मियों की आने वाली है, तो आपकी ये 4-5 एक्शंस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सेक्टर्स। तो अगर ये कैलेंडर बन जाएगा तो हम आईआईजी के अंदर से भी ऐसी डिमांड और इंक्रीज करवाना हमारे लिए आसान हो जाएगा और वो एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल की तरफ जा सकता है। तो वी वुड लाइक टू प्रपोज दिस एंड वी आर हैप्पी टू बी अवेलेबल कभी भी। एंड बहुत बहुत धन्यवाद अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच धनंजय, आपने बहुत ही शॉर्ट में काफी गहराई से हमें बातें समझाई है। एंड आप भी आईजी के मेंबर रह चुके हैं, आपने भी इसमें काम किया है, एंड देन यू नो द बेसिक चैलेंज है कि हम कितने सालों से एक यही कोशिश कर रहे हैं कि वी मेक दिस आईजी नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग कि जब भी कोई इशू आता है तो हम इमीडिएटली लाइक वी आर देयर टू ऑन फील्ड टू डू द वर्क। और अच्छा लगा कि आपने फिर से एक बार यहाँ पर प्रपोज दिया है कि हम अभी तक इतने सालों में हमारी एक भी फिजिकल मीटिंग नहीं हुई है। And I think if you are taking initiative, Dhananjay, we are looking forward that we can at least meet once a year together in Jaipur, so that हम वहाँ जब एक बार मिलेंगे एक से, तो हम शायद अपने और ज़्यादा चैलेंजेस वहाँ शेयर कर पाएंगे। एंड देन एक स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है, तो ही हमारे आईएसजी ग्रुप स्ट्रॉन्ग बनेगा। अदरवाइज विल बी जस्ट ऑल नॉट scattered, and then we'll be doing our individual work, और वो कभी भी एक common platform पे नहीं आएगा। So once again, Dhananjay, thank you very much for coming and then sharing your words. Thank you very much. Dear members, अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है because we had planned to wind up this session by 4:30, but then कुछ समय है हमारे पास। अब कोशिश करेंगे कुछ सवाल अगर हम ले पाएं, और किसी के पास भी कोई सवाल है, you can ask in English as well as in Hindi. You also name the member whom you are asking the question, and you can a very short introduction about yourself also you can share, that कि आप कहाँ काम करते हैं और आप क्या करते हैं, and then आपका सवाल क्या है, वी कैन शेयर, एंड देन विल ट्राई टू बी वेरी प्रिसाइज। ओके, यहाँ हमारे बीच में है डॉक्टर नवीन। डॉक्टर नवीन, ओवर टू यू। मैं भी राजस्थान का जयपुर का। माय वॉइस इज कमिंग नाउ? माय वॉइस इज कमिंग? या सर, क्लियर। ओके।
मैं बहुत सिंपल पूछूंगा। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिव्या जी को, देवव्रत को, धनंजय को। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। संक्षिप्त में कहूंगा, लोगों को रिलोकेट करके रखा जा सकता है, लेकिन चाहे नेचुरल डिसास्टर हो या मैन मेड डिसास्टर हो, सोशोलॉजी ऑफ सफरर को अगर आप एक तरह से देखेंगे तो उनको सहभागी बनाया नहीं जा सकता। क्योंकि मैंने काफी काम इन क्षेत्र में किया, वो कभी सहभागी नहीं हो सकते क्योंकि उनकी सोशोलॉजी इस तरह से काम नहीं करती। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कैसे उनको एक साथ लेके काम कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? आई एम राइटिंग वन आर्टिकल फॉर द इंटरनेशनल वन, सो कैन if you can give me some idea, it will be helpful. Thank you. Not going into detail. Yeah. Okay, so अगर मैं दोबारा बोलूं, अगर सहभागी बनाया नहीं जा सकता समाजशास्त्री आधार पे, तो हम उनको, तब हम क्या कर सकते हैं, क्या करना होगा? क्योंकि भारत में सोशोलॉजी ही काम करती है। बाड़मेर से लेके जोशीमठ तक कहीं भी काम करके देखिएगा, यू विल फाइंड द सेम थिंग एवरीवेयर। So how we can address the issues, whether it's a academic vulnerability or it's a actual vulnerability, both have the different meaning, different perspective. How we are going to address the actual vulnerability? That is my question. Thank you. thank you very much, Doctor. Divya ma'am, सवाल का जी जवाब देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नवीन, आपने बहुत सही बात बोली कि हमारा जितना ये सब चीजें थ्योरेटिकल बड़ी अच्छी लगती हैं, फ्लॉलेस लगती हैं, लेकिन एक्चुअल जब हम धरातल पे काम करते हैं, वाकई में लास्ट माइल के लोगों को जोड़ना और उन डिसीजन मेकिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट इतना आसान नहीं होता। और बहुत बहुत कम ही ऐसे जो हुए हैं काम जिनमें उनका इन्वॉल्वमेंट हो पाया है। तो इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हम आपदा के होने तक का वेट नहीं करें। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, आज अगर हम उस गांव में काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट की जिन स्कीम्स के साथ हम काम कर रहे हैं, जो भी जिस तरह के सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, जो जो स्टेक होल्डर के साथ हम जुड़े हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो माए हों, चाहे वो किशोरियां हों, चाहे वो लेबर कम्युनिटी के हमारे भाई हों, साथी हो, हम जिस जिस स्टेक होल्डर के साथ काम कर रहे हैं, हमारे पूरे प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करना और धीरे धीरे उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना। क्योंकि ये जो एक बदलाव है कि वो डिसीजन मेकिंग में शामिल हो, ये एकदम से अगर हम चाहे कि आज हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमारा हर छोटा छोटा जो एक्शन है, हम जाके जब गांव में मीटिंग करते हैं तो हम किसे इन्वॉल्व करते हैं, या जब मीटिंग हो रही है तो कौन उसमें ओवर पावर कर रहा है, ज्यादा बोल रहा है, और कौन है जो पीछे बैठा सिर्फ सुन रहा है। अगर एज ए एनजीओ जब तक हम ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और उस पर काम नहीं कर पाएंगे, ये वाली जो बात है ना कि सबका डिसीजन मेकिंग में शामिल होना, ये सिर्फ एक किताबी बात होकर रह जाएगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर छोटी बड़ी एक्टिविटी में सबका इन्वॉल्वमेंट हो, जो स्टेक होल्डर है उनका इन्वॉल्वमेंट हो, और उसके बाद में उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो, ताकि उनका वॉइस बाहर आ सके। पहले तो उन्हें वॉइस देना पड़ेगा, तभी तो उनका वॉइस बाहर आएगा। अगर आप एक स्कूल को पेंट करने की बात कर रहे हो, तो उसमें एज ए एडल्ट मेरा दिमाग यूज नहीं होना चाहिए कि कैसा पेंटिंग होना चाहिए, उस पेंटिंग में क्या डिजाइन बना होना चाहिए। आपको एक 5 साल के 6 साल के बच्चे को पूछना पड़ेगा कि वो क्या देखना चाहता है उस पेंटिंग में। उसके लिए शायद वो क्रोकोडाइल, वो पेपा पिग और वो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो उसके दिमाग से सोच के हमें वो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो डिसीजन मेकिंग में बच्चा कैसे शामिल हो, ये हमें ध्यान रखना है। हमारा स्कूल, अगर हम सेफ स्कूल की बात कर रहे हैं, तो छोटा बच्चा सेफ्टी को लेके क्या समझता है कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो वो कैसे अपने आप को सेव करेगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो डिसीजन मेकिंग तभी शामिल की जा सकती है जब हम हर छोटे एक्शन में उनकी भागीदारी साबित करें, और उसके अलावा उनकी कैपेसिटी को धीरे धीरे करके बढ़ाएं। और कैपेसिटी में नॉलेज भी है, कैपेसिटी में जो उनका जो फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है वो भी है, और जितना ज्यादा वो अपडेटेड रह सकते हैं इंफॉर्मेशन के साथ में, वो भी है। Okay, और बिल्कुल आई अग्री विथ यू कि ये इतना आसान नहीं है, बिल्कुल। so thank you दिव्या मैम, आपका क्या जवाब क्या के लिए। कोई मेरी थोड़ी मदद कर पाएगा आप में से कोई, जिसका कोई मुझे नंबर दे दिया जाए? आई एम राइटिंग वन आर्टिकल, क्योंकि जी मैंने जी जी बिल्कुल, कार्डवेलिया के मैं साथ बाद में। हाँ जी जी, मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ रही हूँ, आप सर ले लीजिए प्लीज। थैंक यू।
थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। आप पर्सनली मैम से बात जरूर कर सकते हैं। चैट बॉक्स में वी हैव वन मोर क्वेश्चन, आई थिंक कलिका मोहपात्रा मैम, इफ यू कैन कम ऑनलाइन एंड देन जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन। आप क्या बताना चाह रहे हैं, इफ यू कैन, और अदर्स एनीबडी एल्स, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, और या तो मैम का नंबर हमने चैट ग्रुप में देखा है। You can unmute and speak if anybody has any question. अगर किसी पर पास कोई सवाल है या कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने बारे में, हमारे पास यहाँ कुछ मेंबर्स हैं जो दूसरे स्टेट से हैं और आईआईजी के मेंबर्स हैं। अगर आप बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही छोटे रूप में अगर बता पाएं कि आप क्या कर रहे हैं अपने स्टेट में, तो आई थिंक दैट विल बी नाइस। ओके मैम, जस्ट अ मिनट। Sir, it says that ma'am is not able to unmute. Maybe I can read the question. I think it was to Debadrita ma'am. She was talking about like data collection, like collection of information with less expenditure, like basically a cost-effective method. So if Debadrita ma'am can clarify that. What I said is डेटा कलेक्शन जब हम लोग करते हैं ना, एकदम पहले फेज में जब हम असेसमेंट करते हैं, तो हम लोग कुछ एक अपनी जगह में जाके जहाँ पे हम कंफर्टेबल है या फिर हमारे इंटरवेंशन ऑलरेडी वहाँ पे है, तो वहाँ पे गए हम और हम लोग लोगों से बात करें और हम असेसमेंट करके आ गए। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। द सेकेंड वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज स्फीयर इंडिया ऑलरेडी हैज कॉमन असेसमेंट टूल्स। आप हाउस होल्ड में एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आप विलेज में कर सकते हैं, आप ब्लॉक लेवल में कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कर सकते हैं, वार्ड लेवल पे कर सकते हैं। इनफैक्ट देयर आर ऑल्सो स्पेसिफिक टूल्स फॉर अर्बन फ्लडिंग, रूरल फ्लडिंग एंड ऑल दोज काइंड ऑफ स्पेसिफिक असेसमेंट टूल्स। अगर हर कोई हम लोग जहां जहां जा रहे हैं, अगर हम लोग अपना 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 कुछ अलग टूल के वजह हम लोग ये कॉमन टूल्स यूज करते हैं, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो कोई सेंट्रली कंसोलिडेटेड होता है, जैसे कि स्फीयर हो या आईआईजी बॉडी हो या किसी के साथ भी, अगर आईआईजी वहां पे नहीं प्रेजेंट है तो कोई नेटवर्क अगर हम लोग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इफ एनीवन, एनी ग्रुप volunteers to consolidate that information, तो उससे क्या होता है ना, we get a authentic body of information from each and every part of our from each and every part of our locations, है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं राजस्थान में दुंगारपुर में काम कर रही हूँ और दुंगारपुर का इंफॉर्मेशन मैं आपको लाके दे रही हूँ, उसके साथ साथ मान लीजिए विशाल जी, आप फादर विशाल, आप काम कर रहे हैं जयपुर में, तो आप जयपुर का इंफॉर्मेशन लाके दे रहे हैं। डॉक्टर नवीन, आप अगर मान लीजिए काम कर रहे हैं उदयपुर में, आप उदयपुर का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हम लोग कोई बहुत दूर दूर जगह में नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपना ही इंटरवेंशन एरिया में जा रहे हैं, अपना ही जाना पहचाना लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक सैंपल असेसमेंट रिपोर्ट हो जाता है पूरा स्टेट के लिए, और जो हम लोगों को मदद करती है एक पिक्चर देने के लिए कि कहाँ पे गैप एरियाज है, कहाँ पे इंटरवेंशन की जरूरत है। एंड वो हमें ये भी मदद करती है, जब हम लोग फिनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करते हैं तो हमको वहां पे भी ये मदद करती है, बिकॉज वी कैन बी वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ आवर रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी। हम लोग बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पे गैप है, दिस इज माई स्पेशलाइजेशन एंड दिस इज द अमाउंट दैट आई एम आस्किंग फॉर दिस much population that has been affected by this thing, and this is supported by not by only my organization. You don't have to trust only me, but it is a common resource, it is a collective resource. So there are so many people who are contributing to this, and it's a now public document, public domain resource. So उसी तरीके से अगर हम लोग collectively काम करते हैं, coordinative way पे काम करते हैं, तो हमारे पास बहुत easily ये एक रिसोर्स बन सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। दिव्या, आप कुछ एंड नोट देना चाहेंगे? हाँ, मुझे एक चीज हमेशा लगती है कि देखो, बहुत सारी नॉलेज ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे है। आईआईजी में जुड़ने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि हम जितना ज्यादा सारे नॉलेज को हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हम जिस स्टेट में, हमारे जो हैजार्ड है, जो सिचुएशन है हमारे स्टेट की, उस कॉन्टेक्स्ट में उसको परिवर्तित करके कैसे हम सभी साथियों के साथ उसको शेयर कर सके।
हर टाइम कुछ कुछ नया नया टेक्नोलॉजी, नए नए टूल्स, बहुत सारे आप देखो क्लाइमेट चेंज पे कितनी सारी स्टडी हो रही है, कितने अच्छे अच्छे पीपीटी अवेलेबल हैं। अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ वो सब शेयर करें तो वो काफी यूजफुल हो सकते हैं सबके लिए। और बहुत सिंप्लीफाई है, बहुत सिंपल रूप से है वो, जिन्हें आराम से मतलब हमारे वो छोटे पार्टनर्स भी यूज कर सकते हैं जो सिर्फ शायद 10 गांव में काम कर रहे हो, 5 गांव में काम कर रहे हो, लोकल लेवल के सीवीओस जो सिर्फ शायद 1 या 2 गांव में काम कर रहे हो, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बहुत सिंपल सिंपल टूल और टेक्नोलॉजी है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हीट वेव का सिचुएशन है, कैसे हम कुछ डिग्री सेंटीग्रेड अपना तापमान कम कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग में, जो भी हम हमारा घर है, स्कूल है, या जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमने मतलब सीट्स ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और उसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी एक वो बनाई है, बुकलेट तैयार की है उस टेक्नोलॉजी को लेके। वो बुकलेट अभी तो इंग्लिश में है, मैं गुजरात राजस्थान का जो आईएजी का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसमें आपको शेयर कर देती हूँ। तो जो पार्टनर्स उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने साथियों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, मोस्ट वेलकम। तो इस तरह की बहुत सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन सभी के पास है। किसी के पास जेंडर को लेके है, किसी के पास एजुकेशन को लेके है, किसी के पास। तो हम जितना ज्यादा अपनी जानकारी को आपस में बांटेंगे, जितना सिंप्लीफाई तरीके से एक दूसरे को शेयर करेंगे, वो सबको बड़ा काम आएगा, बहुत काम आएगा। जैसे वाटर की बात ये हमारे धनंजय कर रहे थे, तो आप देखो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसने वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन पे लीड किया पूरे इंडिया को। जो शुरुआत हुई थी जो पायलट प्रोजेक्ट की राजस्थान में, आज वो पूरी इंडिया में जल जीवन मिशन बन के आगे आया है। तो ये एक लर्निंग आपकी स्टेट से दूसरी स्टेट में गई, वैसे ही दूसरी स्टेट की जो लर्निंग्स है उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आपके कॉन्टेक्स्ट में, और उसको अपने एरिया के कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक करके थोड़ा कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। Okay, thank you, Divya ma'am. हमारे पास there are some questions here on the chat box. I can see. I will ask Kalika and then we also have Aanchal. They are asking that हम उन्हें ऐसे assessment के tools कहाँ से मिल सकते हैं. I will ask Hannah to contact Aanchal and Kalika, and you can provide if you have any tools. If you have, then surely it will be helpful for them. सो इसी के साथ आप सभी को मैं वापस से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने समय निकाला एंड देन वी केम ऑन बोर्ड, और आज हमने बहुत ही अच्छा जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट रहा वो बहुत अच्छा था और हमें काफ़ी मदद मिली है। और स्पेशली हमारे रिसोर्स पर्सन्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने समय निकाल के हमें बहुत इनलाइटन किया है। और जैसा धनंजय ने ऑलरेडी हमें बताया है कि हमें एक बार फिजिकली मिलना ज़रूरी है, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल जब हम एक बार फिजिकली मिलेंगे हम एक दूसरे को और जान पाएंगे, और हमारे जो चैलेंजेस हैं शायद वो 1 या 1.5 घंटे की मीटिंग में हम डिस्कस नहीं कर पा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल लेकिन हमारे पास समय नहीं था कि हम काफी सवाल यहाँ पर आज ले पाए और उस पर डिस्कशन कर पाए। तो जब हम साथ बैठेंगे तो शायद एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, एंड देन एक रोड मैप बनाना जरूरी है, क्योंकि ये हर 3 या 4 महीने के बाद हमें अलग तरह का डिजास्टर देखने को मिलता है। गर्मी के मौसम में अलग है, सर्दी के मौसम में अलग है, बरसात में अलग है। तो आई थिंक हमारे लिए हर क्वार्टर में एक मीटिंग या एक रोड मैप या प्लान जरूर होना चाहिए, ताकि हम इस तरह के डिजास्टर से मिटिगेट कर पाए और अपने कम्युनिटी को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बना पाए। मैं यहाँ सभी मेंबर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे एक राजस्थान का आईएजी ग्रुप है। जो भी यहाँ पर आज मौजूद हैं, इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस आईएजी ग्रुप, प्लीज उस ग्रुप में ऐड होने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐड नहीं है तो अगर आप उसमें रिक्वेस्ट भी भेजेंगे तो एनी ऑफ आवर मेंबर कैन ऐड यू इन दैट ग्रुप। और उस ग्रुप में हम आगे की स्ट्रैटेजी पे जरूर बात करेंगे कि हम कब फिजिकल मीटिंग रख सकते हैं, और जब आने वाले समय में जाके हम देख सकते हैं कि राजस्थान में अब ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होने लगा है, तो हम इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है कि अगर हीट वेव बढ़ता है या मौसम खराब होता है तो हम कैसे अपने बेनिफिशियरीज को इससे बचा सकते हैं, या हाउ कैन वी हैव a common understanding and also have a plan for mitigation this. So once again, Hannah, over to you if you would like to thank all the members, and then we wind up. Sorry, Father. If you read sorry, Father. If you Uh, read the IAG Rajasthan's uh, 2007's note, it is with the UNICEF. I forget the name of that lady. She was from Australia. I think that no, now is the Dhananjay. Earlier in 2007, the initiation of that IAG Rajasthan one. The note has so many other things. If you have, then definitely. If you don't, then I can provide you again. Yeah, thank you. Sure, sir. आप ग्रुप में ऐड हो जाइए सर, and then you can share the data there also. Sure. Why not? Okay.
Thank you so much, Father Vishal, for summing up the discussion. So since you have gone a bit overboard on time, I'll quickly finish the meeting. So it was quite a productive session. We got to know a clear roadmap on like how to do comprehensive risk assessment. Divya ma'am, you have mentioned quite in detail on how to take on the process and different steps in doing that. And also we heard the importance of assessments and collaborations from Debajita ma'am, and also several positive things about collaboration and how can we effectively deliver disaster responses in that way. And she also mentioned importance of networks like Sphere and IAG and how beneficial it can be. She also mentioned a lot of real world examples. And also at the end, we learned about different coordination mechanisms, space-time planning, how can we design the data and format, and the importance of having a list of vendors and resource mobilization, and also involving youth in disaster preparedness. So overall, we kind of covered many aspects of coordination in today's meeting, and I really hope that it was helpful for all the organization that have been listening. Thank you so much for joining our sessions, and once again, I would like to extend a deep thank to all the speakers who came today. Thank you so much. It was very informational, and I believe that this would lead to another offline IAG session. And I once again would like to encourage all the people who are joining. If you're working in Rajasthan, please do reach out to us. I've mentioned the phone number and email ID of Academy, so you can reach out to us. We'll help you get in connect with the IAG, and we can have an offline meeting then. And it will definitely help us in the upcoming disasters if it happens. So thank you so much, everyone. Thank you so much for your time. Really appreciate it. We'll meet for the next session. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Father Vishal. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. See you soon. Yeah, sure. I will also come Jaipur. Yeah. So, Jaipur is my sasural, so I will surely come. very good. Thank you. Thank you. Thank you. I Thank forgot you. to mention special thanks to IAG Rajasthan and Father Vishal for helping us coordinate with the speakers and for organizing the session. Yeah. Thank you so much, Father. Thank you. Thank you.